Yes, namaste Ashish ji. Welcome. नमस्कार सर. Namaste. Chalo. So let's start with our session. Yes, Seena ji has joined. Welcome, Sunita ji. Yes, I am Manisha ji. Yeah. Welcome, Aryan ji. Good to see you all. So let's start with our. Yes. Okay. Good. Komal ji is also there. Let's start with our session. We'll have Om chanting for this round, followed with the prayer. Back straight, eyes closed. Deep inhalation. Inhale. Last one more time. Inhale. So, silence. Slowly and gently, holding your palms. Start with the prayer to Maharishi Patanjali. Inhale. Yogena chittasya padena vacham malam sharirasya cha vaidyakena yopankarotam pravaram tanjalim pranjaliranatosmi. Warm palms on your eyes. Slowly and gently open your eyes behind closed palms. Blinking your eyes slowly and gently. Let the light rays enter your eyes. Take your warm palms down and relax. Namaste. Yes. Welcome everyone. Namaste. So let's start with our session. We will have a quick revision. Anybody who was there last time, can you just tell what are the different concepts that we had learned? Any idea? क्या क्या देखा था हमने? हम योग सूत्र. Yes. Riptis and the and Chitta Bhumi. चित्त भूमि 5 टाइप्स के माइंड देखे थे. या किसी को याद है क्या उनके नाम है? क्षिप्त, विक्षिप्त, मूड, एकाग्र और निरोध, राइट? Yes. Then we also saw what are the different वृत्तिज. या तो चित्त भूमि देखे, फिर हमने वृत्तिज देखी और उनको ओवरकम करने के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस अभ्यास वैराग्य. ओके, तो जिनको ये पॉसिबल नहीं है उनके लिए वी आल्सो हैव व्हाट इज ईश्वर प्रणिधान. ओके, इसके बारे में भी देखा. और ये प्रैक्टिस करते वक्त क्या क्या चैलेंजेस आते हैं वो भी हमने देखे. दे आर द 9 challenges, ओके, व्हिच आर कॉल्ड एज अंतरायस, राइट? दोज हु प्ले द ओम कार्ड गेम, उनको याद है क्या क्या वो चैलेंजेस है? सो ये नहीं हो रहा है क्या था ये कांसेप्ट? ये नहीं किया था हमने. नो सर. ओके, अच्छा, तो अभ्यास वैराग्य का कांसेप्ट देखा था हमने. क्या देखा? ओके, देन वी विल जस्ट डू दिस. Okay, so these are the sutras which are there for your syllabus, which you have to by heart. Okay, so anyways, what we will do is we will do the chanting. I will chant the sutra and then everybody will repeat it 3 times. Okay, so we will start with the first path, samadhi path. Uske 12 sutras hai. Atha yoga anushasanam. 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 Yoga anushasanam. ये सबने कहना है. हाँ, आधे लोग पोस्ट करने के बाद.
ओके तो ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा बढ़ने मत देना. ओके सो फोकस. ये हमने पहले भी किया है लेवल 1 में, इसलिए हम फास्ट जा रहे हैं. सेकंड इज व्हाट इज योगा? योगा चित्त वृत्ति निरोधः. योगा चित्तवृत्ति योगा चित्त वृत्ति निरोधः. योगा चित्तवृत्ति निरोधः. योगा चित्त वृत्ति निरोधः. योगा चित्तवृत्ति निरोधः. तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम्. तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम्. तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम्. तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम्. तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम्. तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम्. Yes, I will just brief what we have learned in these 3 sutras. First sutra says yoga is the science of self-discipline. Second sutra says what is yoga? Yoga is the science to control the thoughts of your mind. Then what will happen if you control that? The benefit of yoga is tada drashtu swarupe avasthanam is you can understand your true self. Okay, self-realization will happen. Now the fourth sutra is what will happen if I don't practice yoga? Vritti sarupyam itaratra. वृत्ति सारूप्यम इत्यत्र. Yes, अभी जैसे अभी समर वेकेशन है एंड वी हैव दिस योगा कोर्स, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं यार योगा बहुत बोरिंग है, ये हमको योगा नहीं करना. ओके तो नहीं करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा. उससे में क्या प्रॉब्लम है? जो पहले लाइफ चल रही है वैसी चलेगी, प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा. बट अगर आप करते हो तो जो लाइफ चल रही है उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें ऐड हो सकती है. ओके तो that is what, there is no disadvantage in case you fail or if you don't practice yoga, there is no disadvantage. सिर्फ करेंगे तो एडवांटेज ही है. ऐसे वृत्ति सारूप्यम इतरत्र. 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 यस, वृत्ति मतलब थॉट्स अलग अलग. उसने ये रील दिया डाला, उसने वो पोस्ट किया, उसने मेरे बारे में वो कहा, फिर ये मेरे में पास होऊंगा या फेल होऊंगा, ये सारे क्या है? वृत्ति है, ये सारे थॉट्स है. तो ये जैसे अब तक जो परेशान करते आए हैं वैसे आगे भी परेशान करते रहेंगे. इनको जो योगा प्रैक्टिस नहीं करेंगे उनको ये प्रॉब्लम सताते ही रहेंगे. सो नेक्स्ट द फिफ्थ इज, अब ये जो वृत्तिज है, ये जो मन में विचार आते हैं वो किस किस तरह के होते हैं, उसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः. वृत्तयः पंचतयः क्लिष्ट अक्लिष्टाः. चलो सबने बोलना है, लास्ट में मैं सबको पूछने वाला हूँ. वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टाः. वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाः. गुड. अब ये 5 टाइप के थॉट्स कौन से हैं वो देखेंगे. प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः. 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 Now what is प्रमाण? प्रत्यक्ष अनुमान आगमः प्रमाणानि. प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि. प्रत्यक्ष अनुमान आगमः प्रमाणानि. प्रत्यक्ष अनुमान आगमः प्रमाणानि. प्रत्यक्ष अनुमान आगमः प्रमाणानि. प्रत्यक्ष अनुमान आगमः प्रमाणानि. विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम् अतद्रूपं प्रतिष्ठम्. 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 विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम् अतद्रूप प्रतिष्ठम्. विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम् अतद्रूप प्रतिष्ठम्. शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः.
शब्दज्ञानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। वेरी गुड। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। शब्दज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा। भाव प्रत्यय आलम्बना वृत्ति निद्रा। अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा। भाव प्रत्यय आलम्बना वृत्ति निद्रा। भाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा। भाव प्रत्यय आलम्बना वृत्ति निद्रा। अनुभूत विषय असंप्रमोषः स्मृतिः। अनुभूत विषय असंप्रमोष स्मृतिः। अनुभूत विषय असंप्रमोषः स्मृतिः। अनुभूत विषय असंप्रमोष स्मृतिः। अभ्यास वैराग्याभ्याम निरोधः। अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः। वेरी गुड, यस। चलो अब कोमल जी और उर्मिला जी भी आए हैं। वेरी गुड। अब हमने जो भी अभी यहाँ पे पढ़ा है उसको पहले के जो 6 है वो कोमल जी आप उसको बोलोगे, फिर बाकी के जो 6 है वो उर्मिला जी बोलेंगे। चलो स्टार्ट करेंगे। पढ़ के सुनाना है, इसलिए कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, और ये लेवल 1 में भी हुआ है। अथ योगानुशासनम। पूरे 6 पूरे के 6 बोलने हैं आपको। यस सर। योग चित्त वृत्ति निरोधः तदा दृष्ट स्वरूपे अवस्थानं वृत्ति स्वरूपम इतरात्रा वृत्तय पंचतय कलिष्ठा अकलिष्ठा प्रमाण विप्राय विकल्प निद्रा स्मृतय। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब आगे उर्मिला जी आपको आगे के 6 बोलने हैं, पढ़ के सुनाना है। यस सर। यहाँ से शुरू करें। अच्छा 11 से शुरू, कहाँ से शुरू करना? 7 से। ये कर्सर दिख रहा है, प्रत्यक्ष अनुमान 7 नंबर से शुरू करना है, 1.7 से। हाँ जी। प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणी। यस। विपर्यो मिथ्या ज्ञानम तदा रूप प्रतिष्ठम। अतद रूप प्रतिष्ठम। यस, आगे। शब्द ज्ञान पाति वस्तु शून्यो विकल्पः। अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निद्रा। वेरी गुड। अनुभूत विषय स्मृतिः। अभ्यास वैराग्याभाम तन्निरोधः। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बढ़िया। चलो अभी हम थोड़ा सा एक्साइटिंग करेंगे, गेम खेलेंगे। ओके, मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको वो कैटेगरी में डालना है कि ये कौन से क्लिष्ट है, अक्लिष्ट है, और कौन से टाइप के वृत्ति है। ठीक है? जैसे बचपन में आप मुझे आइसक्रीम नहीं देते थे, ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया? Sir, is it for mother or no, this sentence for the child। अब ये मैं कह रहा हूँ ये माँ को कि तुम मेरे को आइसक्रीम नहीं देते थे, तो ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया? स्मृति। वेरी गुड, यस स्मृति, ये 11th नंबर का स्मृति का एग्जाम्पल हो गया। और कौन सा, ये क्लिष्ट है या अक्लिष्ट है? क्लिष्ट। क्लिष्ट, यस यस यस, वेरी गुड। और अब यही चीज मदर के हिसाब से ये क्या, कौन सा एग्जाम्पल हो गया? अक्लिष्ट हो गया। यस, क्योंकि आइसक्रीम नहीं देती थी इसलिए तुम्हारे दांत है, नहीं तो अभी बोलने के लिए दांत भी नहीं रहते, है कि नहीं? तो ओके, अब ऐसे ही आप भी कुछ एग्जाम्पल्स, मैं ऐसे कुछ एग्जाम्पल पूछूंगा, आपको कुछ मन में आए तो, या आपके लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल है जो आपको समझ में नहीं आ रहा क्या है, तो यहाँ पे हम एक्टिविटी में ले सकते हैं। ठीक है? अब जैसे
अब वो बाजू वाला लड़का शरारती था, बट अब जब से ना वो आगे की पढ़ाई करने के लिए बाहर गया है, तब से पूरा मोहल्ला एकदम शांत शांत सा लगता है। अब ये कौन सा एग्जाम्पल है? निद्रा। निद्रा, वेरी गुड वेरी गुड। और ये कौन सा, मतलब अब क्लिष्ट है या अक्लिष्ट है? अक्लिष्ट। अक्लिष्ट। अक्लिष्ट मतलब अच्छा है वो चला गया है। हाँ, कौन सा है, क्लिष्ट है या अक्लिष्ट है? अक्लिष्ट। अक्लिष्ट मतलब उसको जाना, वो गया, वो अच्छा हो गया, या ऐसे लग रहा है उसके हमारे लिए क्लिष्ट हो गया क्योंकि आप मिस कर रहे हो ना पहले है ना, कुछ ना कुछ चहल पहल होती थी, अभी एकदम शांति शांति हो गई है, नहीं क्या? ओके, तो या निद्रा का एग्जाम्पल है। ओके, अब सासू माँ कहती है कि यू नो मैं बस से ही जाऊंगी क्योंकि मेरे को फ्लाइट से डर लगता है, फ्लाइट गिर गई तो क्या होगा। हाँ, तो इसके लिए वो यहाँ से जम्मू, अब वो बस से ही जाना चाहती है। अब क्या करेंगे, वो कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा? विकल्प। ओके, या विकल्प, हर टाइम फ्लाइट गिरती नहीं है। ओके, और ये क्लिष्ट है या अक्लिष्ट है? अक्लिष्ट। क्लिष्ट। क्लिष्ट। क्लिष्ट है, यस क्लिष्ट है, क्योंकि अब वो है ना, वो सफर बहुत पेनफुल रहेगा उसके लिए भी, है ना, और जो टिकट निकाल रहा है उसके लिए भी पेनफुल रहेगा क्योंकि इतनी बड़ी लंबी बस नहीं है, बस बदलनी पड़ेगी, बहुत सारी झंझट होगी। हाँ, तो फिर बहुत कंसर्न रहेंगे, पहुंचे नहीं पहुंचे, ऑल दिस थिंग्स। तो ये क्लिष्ट विकल्प का एग्जाम्पल हो गया। अब आप आपने तो प्लान बनाया था घूमने जाने का, और सडनली बेल बजती है और गेस्ट आ गए, हाँ, 10 दिन रहने के लिए। तो ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया? प्रमाण। प्रमाण। ओके, प्रमाण में कौन सा प्रमाण हो गया? ये क्लिष्ट प्रमाण हो गया। ओके, क्योंकि अभी प्लान तो कैंसिल हो गया। और ये कौन सा प्रमाण में कौन सा स्पेसिफिक है, प्रत्यक्ष है, अनुमान है, या आगम है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष। यस, आपने खुद ही दरवाजा खोला है और दिख रहे हैं कि वो सामने खड़े हैं। यस, ओके। चलो, तो इस तरह से हमारी लाइफ में जो भी चीजें होती है उसको हम इस तरह से क्लासिफाई कर सकेंगे, है क्या? इसी में है हमारी लाइफ की जो भी अच्छी बुरी जो भी चीजें होती है वो सब इसी में है। और इससे अगर आप, इफ यू आर एबल टू यू नो साइंटिफिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड योर लाइफ, आपको आपके लाइफ में बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। ऐसे आने लगी है क्या किसी किसी के लाइफ में? आपको अभी आजकल लाइफ में बहुत चीजें अच्छी तरह से दिखती है, जो पहले धुंधली थी अच्छी तरह से दिखने लगी है, प्रॉब्लम्स। ओके, या सो दैट्स हाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ योग सूत्र इज, कि लाइफ में हम बहुत बार इधर उधर भटक जाते हैं, योग सूत्र से हम फिर से एक लाइफ में क्लैरिटी ला सकते हैं। तो चलो उसी का एग्जांपल लेंगे कि हमको तो घूमने जाना था पर अभी आ गए गेस्ट। अब उसके लिए एग्जांपल उन्होंने सोल्यूशन क्या दिया है महर्षि पतंजलि जी ने? अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोध। अब इसको अप्लाई करो, आप कैसे अप्लाई करोगे अभ्यास वैराग्य इस सिचुएशन में, कैसे अप्लाई करोगे? सर वो नहीं जा पा रहे हैं, उससे मतलब इतना कोई दुख नहीं होना चाहिए, तो डिटैचमेंट फ्रॉम द एंड रिजल्ट, तो वैराग्य अगर होगा तो उस टाइम पे प्रॉब्लम नहीं होगी। एब्सोल्युटली। अभी आज हम घूमने नहीं जा रहे, इसका मतलब लाइफ में कभी घूमने नहीं जाएंगे ऐसे थोड़ी है, गेस्ट जाने के बाद करेंगे। तो वैराग्य आज नहीं जा रहे, पर अभ्यास मतलब प्रयास, वो जाने के बाद फिर से कोशिश करो घूमने जाने की। कब तक करोगे? कब तक करोगे? यस, जब तक घूमने नहीं जाएंगे तब तक। हाँ, जब तक वो हस्बैंड घूमने नहीं लेके जाते तब तक कोशिश करते रहनी चाहिए। हाँ, और हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, तो वैराग्य है जो आपको हेल्प करेगा, है ना, बहुत ज्यादा दुख नहीं लगेगा। ओके, वैराग्य रहेगा तो हर टाइम आपको डिमांड करने में, है ना, सुविधा होगी। तो चलो उसी तरह से हमने थोड़ा सा ये एक्टिविटी किया है, अब आगे चलेंगे। नाउ इन द सेकेंड चैप्टर, सेकेंड पार्ट, एक्चुअल प्रैक्टिसेस ऑफ योगा स्टार्ट, जो हम रोज करते हैं। हम रोज योगा में क्या आसन प्राणायाम ये सारी साधना करते हैं, तो ये सेकंड पार्ट में आता है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आसन। स्थिरम सुखम आसनम। सुखम आसनम। यस, स्थिरम सुखम आसनम। स्थिरम सुखम आसनम। स्थिरम सुखम आसनम। स्थिरम सुखम आसनम। यस, तो आप सभी को यही क्वेश्चन आता रहेगा। अब मैंने तो पवन मुक्तासन तो लेवल 1 में सिखाया है, अब क्यों करूं? मैंने तो बचपन में ही सिखाया है, लेवल 1 में क्यों करूं? राइट।
पर ये आसन का मतलब सिर्फ आप एक पर्टिकुलर बॉडी की पोस्चर नहीं बना रहे हो, आप उससे भी आगे कुछ आपको सिखाने की कोशिश हो रही है। आसन मतलब हर कोई वो चीज, हर कोई वो एक्सपीरियंस जो आप लेना चाहते हो। जैसे मान लो कोई रिलेशनशिप, कोई जॉब या कोई ऑब्जेक्ट को अचीव करना, ठीक है। तो आप में से कितने लोग ये अग्री करते हैं कि कुछ देर के बाद हमको वही चीज जो पहले अच्छी लगती है, वही सिचुएशन जो पहले अच्छी लगती थी, वही काम जो पहले अच्छा लगता था, बाद में क्या होता है? बोरिंग। बोरिंग। और किसने बोला बोरिंग? वेरी गुड। हाँ, बच्चों से लेकर हम सभी बड़े तक सबको क्या एक ही चीज है कि कुछ देर के बाद वही चीजें बोरिंग। तो वही खाना भी बोरिंग होता है। हाँ, हाउ मेनी ऑफ यू घर का खाना फिर बाद में बोरिंग हो जाता है? हाँ, घर के लोग भी बोरिंग हो जाते हैं। दोस्त भी, वो पहले वाले दोस्त बोरिंग हो जाते हैं, और है ना, पार्टनर्स भी बोरिंग हो जाते हैं, काम भी बोरिंग हो जाता है। हाँ, वही काम। अरे मतलब पहले जमाने के लोग जिस कंपनी में ज्वाइन होते थे, जैसे मेरे पिता टाटा मोटर्स में ज्वाइन हुए, और 38 साल के बाद टाटा मोटर्स से ही मतलब अब 38 साल के बाद तो रिटायरमेंट, मतलब अब बोलेंगे चलो बाय बाय, अभी घर जाओ, घर बैठो। फिर भी वो कह रहे नहीं नहीं, मैं फ्री में भी आ सकता हूँ। मतलब that kind of attachment they have, or the love, क्योंकि 38 years is more than his marriage, no? मतलब शादी से भी ज्यादा टाइम उन्होंने कंपनी के साथ बिताया, तो कंपनी उनको है ना पार्टनर से भी ज्यादा पसंद है। तो you know what we are trying to understand is, ये जो उनका अटैचमेंट है, the attraction that they have towards company which is so strong is आसन in our today's sense। सही बात है ना, राइट? तो ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी रिलेशन है, ऐसी कौन सी आदत है जो आपको इतने इस लेवल तक आपको लेके जाना चाहते हो आप आपके लाइफ में? तो वो ढूंढो। तो जब आप वो ढूंढोगे, वो पैशन या जो भी हो, यू नो, सो दैट इज योर आसन। तो आप में से कितने लोगों के पास आसन है? ओके, हाथ ऊपर। वेरी गुड। सुनीता जी, आर्यन जी, अच्छा हिना जी। Sir, I'm still in search of it. कोई बात नहीं, बट अभी समझ में आया आपको क्या ढूंढना है? Yeah, वेरी yeah. गुड, वेरी गुड। या बाकी आशा जी, वैदेही जी, अनुपमा जी, कोमल जी, ओके। अगर नहीं मिला है तो वो ढूंढो। ओके, वो चीज हो सकती है, वो इंसान हो सकता है, वो सिचुएशन हो सकती है, उसको ढूंढने की कोशिश करो। वो सबसे इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइंडिंग योर ओन आसन। ओके, तो जब वो आपको मिल जाएगा तो उसमें आप स्थिर रहोगे और उससे ही आपको खुशी मिलेगी। ओके, एंड समटाइम्स इट नॉट नेसेसरी that what you find or what you are doing always will give you money, name, fame and all these material things. Okay, कभी कभी ये दोनों एक साथ भी मिल सकते हैं, बट कभी कभी ये अलग अलग हो सकते हैं। तो just because mostly this happens with hobbies. Okay, वो आपको पैसे नहीं देते, इसलिए काफी बार हम बच्चों को डिस्करेज करते हैं, बच्चे को छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं है। It is very important that along with life skills, these skills are also very important. You should give some time, and you know, abhi why am I saying this is because abhi summer vacations are rahe, so all the mothers who feel like the whole of the year we couldn't give that time, resources to the kids जो उनको करना चाहते हैं, तो if really it is something that the child likes, that is his or her आसन, उसको वो करने के लिए हमको थोड़ा मोटिवेट करना चाहिए। अब आगे, अब ये आसन तो डिफिकल्ट होता है। इवन आप हॉबीज में भी देख लो, किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, किसी को गाना अच्छा लगता है, किसी को सोना भी अच्छा लगता है, तो कुछ भी हो सकता है हॉबी, है ना? आप में से कितने लोगों की हॉबी है सोना? नो वन? हाँ, अरे कोई तो मिल गया, यस। तो कुछ ना करना या सोना, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। ओके, तो ऐसे कुछ नहीं, कोई हॉबी अच्छी बुरी ऐसे कुछ नहीं होता। तो हर हॉबी आप कल्टीवेट कर, मतलब जब शुरू करते हो तो वो डिफिकल्ट होती है। मतलब मतलब मान लो कि अगर हम लोग अगर आर्यन जी की तरह सोने की कोशिश करें तो उनको कंपटीशन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि थोड़ी देर में हाथ पैर हिलेंगे, फिर लगेगा अरे चलो बोर हो गया हमारा हमेशा का, फिर हम उड़ जाएंगे, कुछ ना कुछ मोबाइल देखेंगे, ये वो करेंगे। बट आर्यन जी फोकस तरीके से, है ना, सोते रहेंगे। ओके, तो उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो उसको क्या बोलेंगे हम? महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है आर्यन जी को और हमको क्यों नहीं होता? तो वो कहते हैं प्रयत्न शैथिल्य।
मतलब इतनी बार कोशिश होती है कि वो अभी एफर्टलेस बन गया, मतलब अभी सोने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लेने ही नहीं पड़ते आर्यन जी को। पर हमको मतलब चलो बहुत सारा दूध पियो, बहुत मेहनत करो, कुछ ना कुछ करने के बाद नींद आती है, नहीं तो नींद नहीं आती। और अनंत समापत्तिभ्याम, मैं जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, आर्यन जी आर यू कंफर्टेबल नो? ओके। और अनंत समापत्तिभ्याम मतलब आप उसमें लाइक यू फील दैट यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग इन लाइफ, मतलब सबसे ज्यादा खुशी उसमें मिलती है जब वो कर रहे हो, वो चीज कर रहे हो। तो ऐसे आपको लगता है क्या त्रिकोणासन में, ताड़ासन में? नहीं ना। तो वो आपका आसन नहीं है। किसने बोला वो आसन करना है इसलिए आप कर रहे हो, तो आपका खुद का फेवरेट आसन ढूंढो। इसलिए महर्षि पतंजलि ने ये आसनों में कोई नाम नहीं लिखा, because his idea of explaining asana is far more spiritual and far more at a intellectual mental level. but आगे चल के लोग थोड़े कम क्रिएटिव हो गए, हर किसी के लिए उनको नोट्स चाहिए। तो फिर आगे हठयोग जब आया तो हठयोग प्रदीप का में बोला चलो ये 15 आसन करो, फिर गेरेंट सवेता में बोला ये 32 आसन करो। तो इसलिए मतलब स्पून फीडिंग होने लगा। पहले जमाने में गुरु थे तो वो सिर्फ गाइड करते थे, फिर बाद में वो हमारी तरह हो गया, पैसे भरो कोर्स करो। तो फिर वो अब पैसे भरे तो पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा, तो वैसे वाली चीजें आगे आगे आती गई। बट द फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू मेक द स्टूडेंट इंडिपेंडेंट। तो आसन कैसे ढूंढे और उसको अचीव करें? तो प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। फर्स्ट इज प्रयत्न शैथिल्य, जब तक वो आसान तरीके से हो नहीं जाता तब तक करते रहो। अनंत समापत्तिभ्याम, उसमें आपको एक्सट्रीम खुशी जब तक मिलती नहीं है, आप पूरी तरह से मेडिटेशन में चले नहीं जाते तब तक करते रहो। अब ये करने के बाद क्या होगा? आसन करने से क्या मिलेगा आपको? कोई बोलता है मेरा मोटापा कम होगा, कोई कहता है कि मेरी हाइट बढ़ेगी, कोई कहता है मेरे को इंस्टा पे बहुत लाइक्स मिलेंगे, कोई कहता है मेरे को और ज्यादा 4 स्टूडेंट्स आ जाएंगे योगा क्लास को मेरे। तो वो तो हो गए, वो हमारे बेनिफिट्स है, यू नो। बट अकॉर्डिंग टू पतंजलि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग आसन? कोई बताएगा? यहाँ पे लिखा है द्वंद्व अनभिघातः। वेरी गुड। तो तत्व मतलब वो करने से, क्या? आसन करने से। द्वंद्व, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द्वंद्व? पेन Not pain. Yes, anybody else? It's half the truth. आधा ही बताया आंसर। द्वंद्व मतलब दो टाइप का फीलिंग, गुड एंड बैड। Yes, good and bad. तो पेन बताया तो उसके साथ प्लेजर भी आना चाहिए, या? ओके, तो पेन एंड प्लेजर। अब मैं आधी चीज बताऊंगा, आप कंप्लीट करो उसको। अब हेल्थ, उसका द्वंद्व क्या होगा? सिक सिक, वेरी गुड। अब सक्सेस, उसका द्वंद्व क्या होगा? फेलियर फेलियर। अब मैं बोलूंगा अप्रिसिएशन, उसका द्वंद्व क्या है? क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म, यस। और हैप्पीनेस, उसका द्वंद्व क्या है? सैडनेस। सैडनेस, ओके। फॉर एग्जाम्पल एडमिशन, ओके, या रिक्रूटमेंट, उसका द्वंद्व क्या है? टर्मिनेशन। टर्मिनेशन, वेरी गुड। अब आप में से कितने लोगों को जो आपने आंसर्स दिए वो चाहिए? सॉरो चाहिए, सिकनेस चाहिए, टर्मिनेशन चाहिए, कितने लोगों को चाहिए? एनीबडी है? कोई हाथ ऊपर कर रहा है? नहीं, कोई नहीं। गलती से हाथ ऊपर किया और वो हो गया सच्ची में लाइफ में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, या? तो हम में से कितने, नोबडी लाइक्स दैट इंक्लूडिंग मी, ओके। तो वी ऑल वांट द वन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। बट क्या आपने कभी किसी को सिक होते हुए देखा है? कोई बीमार देखा है आदमी? यस, होता है। या हैव यू सीन एनीवन हु हैज फेल्ड इन सम एग्जाम? Yes, it is possible. So the other aspect of life is possible, but still we completely ignore it. That's a human tendency. How many of you agree with this? हाँ, हमारे सिर्फ स्कूल में पढ़ाया जाता है क्या? Failure is the first step towards success. पढ़ाया जाता है। बट वही बच्चा एक्चुअल में फेल हो जाए तो उसके पेरेंट्स क्या करते हैं? तो उसको समझ में नहीं आता है कि ये फेल होना है या नहीं होना है, अच्छा है या बुरा है। Okay, so that's what Maharishi Patanjali through Asana wants to explain us कि लाइफ दोनों भी है, और दोनों एस्पेक्ट को अगर आप एंजॉय करना सीखोगे तो आप रियल लाइफ में रियल लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। अगर आपने प्लान किया कि लाइफ सिर्फ एक ही टाइप है और आपको लगता है कि आप दूसरे से हमेशा भागोगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो दूसरा पार्ट आएगा,
और जबकि आपने कुछ उसके लिए प्रिपरेशन नहीं की है, तो आप तो बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे फिर, क्योंकि आपने तो, है ना, आप में से कितने बार ऐसा हुआ है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, रिश्तेदार नहीं आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, और घूमने जाने के वक्त ही वो आ जाते हैं, या कुछ ऐसे ही कुछ लाइफ में जिस चीज से हम भागते हैं ना, वही चीज लाइफ में होती है, या सो दैट इज व्हाट आसनास आर फॉर, कि आसन हम रोज करेंगे तो हम खुद के लिए इस तरह से खुद के माइंड को इस तरह से ट्रेन कर रहे हैं कि आपके माइंड के अपोजिट भी अगर लाइफ में सिचुएशंस आते हैं तो भी आप उसको किसी भी तरह आप उसको निभा ले सकते हो। एंड सो दैट डे आई फेल्ट सो हैप्पी कि अनुपमा जी, आप खुद ही लाइक यू वॉलंटरी वर सो you announced this news and you told how exactly you are feeling, still very focused and calm. It was not like the pain and difficulties were not there, but still you had the courage to openly accept it and still be calm and focused. So that is the moment when we can say कि अनुपमा जी ने आसन पर विजय पाया. You got it? I am just giving an example. ऐसे नहीं कि आपने नहीं पाया है, आप सभी ने अपने अपने लेवल पे पाया है, ओके, बट दैट इज द रियल एस्पेक्ट. कि कोई कहेगा अनुपमा जी को शीर्षासन नहीं आता, वो तो छोड़ दो, शीर्षासन तो कोई भी कर लेगा, बट ये जो उन्होंने किया है वो शीर्षासन या कोई भी एडवांस आसन से भी बहुत ज्यादा मुश्किल है. हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? या राइट. सो दैट इज द रियल पर्पस व्हाट महर्षि पतंजलि वांट्स टू से. बाकी आजकल जो चल रहा है वो तो चलता रहेगा, ओके, बट हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है. And I feel as mothers, how many of you as mothers, सुनीता जी एंड आशा जी, आपको लगता है कि हार जीत तो चलती रहेगी, राइट? आपने देखा है कभी सचिन तेंदुलकर 0 पे आउट हो गया इसलिए उसने चिढ़ के खेलना ही बंद किया, ऐसे कभी हुआ है? तो उसको सचिन नहीं बोलेंगे ना, उसको धोनी नहीं कहेंगे. तो वो इसलिए बड़े हैं क्योंकि हार हो या जीत हो, वो उसमें हर चीज में वो बैलेंस्ड रहते, राइट? तो वुड यू लाइक टू गिव दिस काइंड ऑफ नॉलेज टू योर किड्स? आगे के जनरेशन को देना important है, yeah, and that's the idea when we say we want to have a kids yoga certification program. हम certification क्यों? मतलब इसमें पढ़ाई होगी, जैसे हम बच्चों को कंप्यूटर सिखाते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखाते हैं ना, छोटे बच्चों को भी सिखाते हैं. प्राइमरी स्कूल में हिस्ट्री होता है क्या? ज्योग्राफी होता है क्या? है. प्राइमरी स्कूल में भी है, हाई स्कूल में भी है. तो हर स्कूल, हर स्टैंडर्ड में अलग अलग लेवल पे बच्चे की डेवलपमेंट को देखते हुए ये चीजें सिखाई जाती है. तो उसी तरह से लाइफ में हार जीत जब होगी तो हमको फेस कैसे करना है, ये हमको अभी से ही सिखाना पड़ेगा. नहीं तो हमारे बच्चे कृष्ण के, ये अर्जुन की तरह बड़े बन जाएंगे और फिर वहां पे भगवत गीता बताने के लिए अब कृष्ण मिलेगा नहीं मिलेगा क्या पता. ओके, कलयुग है. हाँ, राइट. तो अभी से ही आपको एज मदर्स यू हैव टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड सो दिस सीड्स ऑफ द योगिक वैल्यूज इन योर फैमिली. फैमिली की बात चल रही है. तो ततो द्वंद्व अनभिघातः. अब ये हो गया आसन के बारे में, ओके. आसन से आपने इस लाइफ के एस्पेक्ट के ऊपर काम किया. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट. अब आफ्टर द फिजिकल लेवल वी मूव टुवर्ड्स द प्राणा लेवल. तो उसमें क्या है? तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयो गति विच्छेदः प्राणायामः. एवरीबॉडी रिपीट आफ्टर मी. तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गति विच्छेदः प्राणायामः. वन मोर टाइम. तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयो गति विच्छेदः प्राणायामः. यस. तो आज ही मॉर्निंग में हमने प्राणायाम की प्रैक्टिस की है, ओके. तो प्राणायाम में हमने क्या देखा? व्हाट इज प्राणायाम हियर? तो श्वास प्रश्वास, श्वास इज इनहेलेशन, प्रश्वास इज एक्सहेलेशन. गति विच्छेद, गति विच्छेदक हमारे रोड पे ऊपर होता है. डू यू नो व्हाट इज गति विच्छेदक? इट्स अ संस्कृत नेम फॉर distraction. नो, रोड के ऊपर. वेरी गुड. या स्पीड ब्रेकर. अब किसी को कुछ बताना है और कोई संस्कृत में तो स्पीड ब्रेकर को हम गति विच्छेदक बोल सकते हैं. तो ये किसकी गति की बात हो रही है? श्वास की, ब्रेथ्स की. तो श्वास प्रश्वासयो गति विच्छेदः प्राणायाम. व्हाट इज प्राणायाम? A tool with which we develop control. Gati vichhed is control on our breathing. That is inhalation and exhalation. Okay, समझ में आया? आपको सूत्र या अगर बाई चांस आप भूल भी गए तो भी आपके लैंग्वेज में इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, इंग्लिश हिंदी अकॉर्डिंगली. ओके, कोई फिर से एक्सप्लेन करेगा?
एनीबडी? आशा जी या उर्मिला जी, एनीबडी? हिंदी में, इंग्लिश में, कुछ भी चलेगा। प्राणायाम क्या है अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि? ऐसे क्वेश्चन आता है तो क्या सर बोलेंगे? प्राणायाम जब हम अपनी सांसों को कंट्रोल करते हैं वही प्राणायाम है। ये वो टेक्निक को हम प्राणायाम कहते हैं। वेरी प्राणायाम गुड, कहते हैं। सिंपल। यस, वेरी गुड। अब उसको हम अलग अलग टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, उसको हम समझने के लिए उसको डिवाइड कर सकते हैं। कौन से बेसिस पे? बाह्य अभ्यंतर, एवरीबॉडी रीड, बाह्य अभ्यंतर, बाह्य अभ्यंतर, स्तंभ वृत्ति, वृत्ति, देश काल संख्या भी, देश काल संख्याभिः, परिदृष्टो, परिदृष्टो, दीर्घ सूक्ष्मः। सूक्ष्मः। वेरी गुड। या तो प्राणायाम को हम किस तरह से समझते हैं? बाह्य और अभ्यंतर, बाह्य अभ्यंतर स्तंभ, ये तीन चीजें होती है प्राणायाम में इंपॉर्टेंट। बाह्य मतलब आपने सांस छोड़ी, अभ्यंतर मतलब आपने सांस ली, और स्तंभ मतलब सांस को रोका। इसी को क्या नाम बताया है हम रोज के प्राणायाम के सेशन में? इन तीन चीजों को क्या नाम से बुलाते हैं? कुंभक, यस, बाह्य स्तंभ कुंभक, मतलब कुंभक, बाह्य मतलब रेचक, अभ्यंतर मतलब पूरक। पूरक, कुंभक, रेचक, इस नाम से हम बुलाते हैं। ओके, यहाँ पे नाम अलग है। अब और कौन से 5 टाइप से हम समझ सकते हैं? एक है देश काल संख्या। देश मतलब आप कहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो, ओके, या कौन प्रैक्टिस कर रहा है? छोटा बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है या बुजुर्ग आदमी प्रैक्टिस कर रहा है, वो भी हो सकता है देश। अब काल, सुबह प्रैक्टिस हो रही है, शाम में प्रैक्टिस हो रही है, वो हो गया काल। संख्या, कितने बार कर रहे हो? 1 राउंड कर रहे हो, 5 राउंड कर रहे हो, 50 राउंड कर रहे हो, दैट संख्या। ये सारी चीजें मैटर करती है। और क्या मैटर करती है? दीर्घ और सूक्ष्म। दीर्घ मतलब और बहुत लंबा, यू हैव दिस 20-80-40 रेशियो। और दूसरा है यू कैन हैव समथिंग लाइक 12:48:24 रेशियो। तो ये दूसरा वाला छोटा रेशियो है, सूक्ष्म हो गया, और पहला वाला बड़ा रेशियो है। आपको समझा मैंने क्या एग्जांपल दिया? उत्तम अधिकारी और हीन अधिकारी, मतलब जो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रैक्टिशनर है वो 20 काउंट सांस लेगा, 80 काउंट अंदर रोकेगा और 40 काउंट छोड़ेगा। हाँ, आज हमने मॉर्निंग में कितना किया? 5 काउंट 6 काउंट से कर रहे थे तो पूरी हवा निकल गई। तो 20 काउंट लेगा तो 80 काउंट रोकेगा, तो फिर तो मतलब तो इट्स टू मच, तो इसलिए उसको दीर्घ बोला है। और सूक्ष्म, जो सबसे मतलब अधम अधिकारी, मतलब जो हठयोग का सबसे बदतर प्रैक्टिशनर है, वो अकॉर्डिंग टू हठयोग प्रदीपिका उन्होंने बताया क्या काउंट है उनका? 12 काउंट इनहेल, 48 काउंट रोकना है और 24 काउंट छोड़ना है। मतलब हम तो वो जो लोएस्ट है हठयोग के प्रैक्टिशनर, उनके आधे से भी नीचे है अभी। बट कोई बात नहीं, हमको कंपैरिजन नहीं करना है, बट हम जस्ट ये देख रहे हैं। काफी लोगों को लगता है कि आसन बहुत चैलेंजिंग होता है, प्राणायाम तो क्या कोई भी कर लेगा, तो वैसा नहीं है। प्राणायाम इज इनफैक्ट इवन मोर चैलेंजिंग। द ओनली थिंग इज दैट हमको आजकल फैंसी चीजें बाहर से देखने की आदत लग गई है, इसलिए हमको वो समझ में नहीं आता कि प्राणायाम कितना डिफिकल्ट है। और ऐसा ही डिफिकल्ट, उससे भी आगे डिफिकल्ट क्या होगा? प्रत्याहार। उससे भी कितना डिफिकल्ट होगा धारणा, उससे भी बहुत डिफिकल्ट है ध्यान। तो वो तो और भी चैलेंजिंग चीजें है। इससे हमको थोड़ा सा आइडिया आता है कि हम जब ये मेडिटेशन वगैरह वर्ड्स इतने कैजुअली यूज करते हैं। इनफैक्ट कल या परसों ही हम ऐसे डिस्कस कर रहे थे, मेडिटेशन कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड मेडिटार। मेडिटार का मतलब है टू थिंक, इट्स अ लैटिन वर्ड। टू थिंक मतलब सोचना, बट मेडिटेशन अगर सोचना है तो योगा में ध्यान जो है वो उसके अपोजिट है। नहीं सोचना है तो हम ध्यान को मेडिटेशन नहीं कह सकते, सही बात है। पर अभी ये इतना, अब किसी को भी जो करते हैं और जो कहते हैं मेरे को मेडिटेशन करना है, ना उनको पता है, ना सिखाने वाले को पता है, ना सीखने वाले को। इसलिए हम तो वो चल रहा है तो चलने दो। बट अगर हम डीप में जाएंगे तो दोनों बहुत अपोजिट और कॉन्ट्रास्टिंग चीजें हैं। आया समझ में? आई डोंट मतलब थोड़ा जोक ही था, बट आया समझ में? ओके, नहीं तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। ओके, सो next what we have is yes, बाह्य अभ्यंतर
विषयक्षेपी चतुर्थः. सो अपार्ट फ्रॉम बाह्य अभ्यंतर स्तंभ मतलब पूरक कुंभक रेचक, और भी एक फोर्थ टाइप का प्राणायाम है. तो महर्षि पतंजलि सेज बाह्य अभ्यंतर, रिपीट आफ्टर मी, बाह्य अभ्यंतर बाह्य अभ्यंतर विषयक्षेपी विषयक्षेपी चतुर्थः. चतुर्थः. यस, बाह्य अभ्यंतर बाह्य अभ्यंतर विषयक्षेपी विषयक्षेपी चतुर्थः. चतुर्थः. यस, तो चतुर्थ का मतलब है चौथा. तो चौथा प्राणायाम कौन सा है कि बाह्य मतलब एक्सहेलेशन रेचक, अभ्यंतर मतलब इनहेलेशन पूरक, और विषय अक्षेपी मतलब इससे भी अलग, मतलब जिसमें आप कुंभक तो कर रहे हो, स्तंभ है, बट बाह्य अभ्यंतर किया ही नहीं. मतलब दिस इज समथिंग सिमिलर टू व्हाट वी हैव इन हठ योग एज केवल कुंभक, जिसमें आप खुद सांस नहीं ले रहे हो, आप खुद छोड़ भी नहीं रहे हो, अपने आप ही सांस रुक गई है, आपको भी पता नहीं है. तो Sir, दैट excuse स्टेट इज देयर. यस, बाह्य अभ्यंतर मतलब क्या बोला आपने? बाह्य का एक्सिल. या बाह्य इज एक्सेल, अभ्यंतर इज इनहेल, विषय अक्षेपी मतलब इससे भी कुछ अलग. मतलब बाह्य अभ्यंतर किए मतलब इनहेल एक्सेल किए बिना जिसमें हम सांस रोकते हैं, ऐसे प्राणायाम को हम फोर्थ कैटेगरी में डाल सकते हैं, जिसको अगर हमको नाम देना है तो उसको हठयोग में उसको केवल कुंभक बोला है. केवल मतलब ओनली, ओनली मतलब सिर्फ कुंभक है, उसमें पूरक नहीं है और रेचक नहीं है, इसलिए ओनली लगा है. वैसे काफी बार आपको अगर संस्कृत में उसका नाम का मतलब ढूंढे ना, तो उसी में आपको सब मिल जाएगा. बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है. जैसे अनुलोम विलोम, उससे आपको प्रोसीजर समझ में आ गई. अनुलोम मतलब लेफ्ट टू राइट गए, विलोम मतलब राइट से लेफ्ट आ गए, समझ में आ गया. नाड़ी शोधन प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम से उसका बेनिफिट समझ में आ गया. इससे क्या होगा? इससे नाड़ी शुद्ध होगी. इस तरह से संस्कृत में अगर आप आसन के, प्राणायाम के, उनका मीनिंग अगर आप समझते हो, एटिमोलॉजी समझते हो, तो आपको बात कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यहां तक आ गया समझ में? प्राणायाम, व्हाट इज प्राणायाम, हाउ टू क्लासिफाई प्राणायाम, एंड व्हाट इज द फोर्थ टाइप ऑफ प्राणायाम. ठीक है, तो Sir, I have a question. या मैडम, या ओके, नमस्ते. Namaste. Good afternoon. Yes. Namaste. Tasmin sati shwasa prashwasa yor gati vicheda. So what is this gati vicheda exactly means? Yeah, gati is the flow, the speed. Yeah, viched means viched. We do anatomy dissection. Viched is to stop. Shava vichedan. Okay, vichedan. so yeah. exhale and inhale is a gati, and when we stop, kumbhak is viched, something like that. No. That kumbhak could also be viched, and along with that, shwas and prachwas, inhalation and exhalation, also we are elongating. That is also a kind of viched, because inhalation, if you are doing for 3 counts, then you do it for 6 counts, then you take it for 9 counts. So that is also a kind of viched, because you are pran ayam. Ayam is to stretch or to control. So that is also a kind of control. Yeah, and the same we are controlling the exhalation also. Instead of fast exhalation, you are trying to exhale it slowly. So control is in every aspect of breath, and this control is called as gati viched. Okay, so gati vichhed is managing. I mean, managing the flow of shwas, prashwas. Yes, yes, Right? yes, absolutely. I think I mean regulating, not managing. Regulate. We regulate. Regulating. No? Whether we have to Right, take right. it deep, or whether we have to take it slow, Yes, something like that. yes, Deep absolutely. and Regulating the breaths. Yeah, and according to counts. Yes, yes. Then the next sutra says whether you are doing it according to counts, according to desh, according to kal, short, long, all these things. There is the next classification. Yeah. So 5 factors they talk about: desh, kal, sankhya, bhi, dirgha, sukshma. These are the 5 factors that control this gati viched. So that chale vate chale chittam. So there is HYP, means Hatयोग Pradipika says chale vate chale chittam nischale nischalam bhavet. Means what? That whenever the prana moves, there are vrittis in the mind. So if your ultimate goal is chitta vritti nirodh, then you have to also control the prana.
Okay, so externally if you start controlling the prana, because vrittis are deep inside, you cannot directly control, but you can control your prana. So if you start controlling your prana, slowly and gradually your vrittis will also be brought under control. So this idea comes from Hatyoktara Dipika. चले वाते चले चित्तम मतलब क्या सर? चले, चले मतलब चलना, चलना। हाँ, चलना, चले वाते चलना। चले चित्तम। वाते मतलब प्राण, प्राण जब आपका चलता है तो चित्त में विचार भी चलने लगते हैं, दिमाग भी लगने लगता है। तो हमको योगा में क्या है, दिमाग को दिमाग चलाना नहीं है। ओके, तो जो हम हिंदी में कहते हैं दिमाग चलना चाहिए तो योगा उसका कंप्लीट अपोजिट है। तो इसके लिए अगर आप हिंदी में योगा को ट्रांसलेट करके बताओगे तो है ना, पेरेंट्स तो आपको है ना, स्कूल में ऐसे पढ़ाओगे तो पेरेंट्स बहुत डांटेंगे हम इधर स्कूल में बच्चों का दिमाग चलाने के लिए भेज रहे हैं, आप उनको बिठाने के लिए कोशिश कर रहे हो तो ये बहुत अलग लेवल का साइंस है। चलो, बट दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आपको क्या लगता है ये दिमाग को रोकने की बात क्यों हो रही है? वृत्तिज रोक रहे हैं, एब्सोल्युटली, वृत्तिज आर डिस्ट्रैक्शंस। ओके, और जो हम दिमाग, जब डिस्ट्रैक्शन हट जाएंगे तो आप कर्म फोकस तरीके से कर पाओगे। तो इसका मतलब वो है। तो सर ये हाउ इट इज आस्क्ड लाइक दिस सूत्र नो 2.5 no just Vishay no, they will Akshepi just ask Chaturtha. you can chant the sutras for pranayam in Yoga Sutra, you can chant the sutras in your syllabus for asana. ये आपके सिलेबस में आपको बाय हार्ट करने के लिए इतने ही सूत्र है, इससे ज्यादा नहीं है। So do they have ask given- the meaning like Bhaya Abhyantar Vishay Akshepi Chaturtha? I have not yet understood about this Chaturtha. What does that exactly Okay, mean? then I will explain. Okay, so first three are what? Bhaya, Abhyantar and Stambha, means exhalation, inhalation and Kumbhak. These three are the three types of pranayam according to Patanjali. But here in the next sutra, Patanjali says there is a fourth type of pranayam also. Now what is that? So there in the first 4 words he explains. This is a type of pranayam where there is no Bhaya, no Abhyantar. Means what remains? Only Kumbhak. Vishay Akshepi means without Bhaya, without Abhyantar, without inhalation, without exhalation. So now what is remaining is only Kumbhak. So this only Kumbhak is called as Keval Kumbhak. This Keval Kumbhak is Chaturtha, the fourth type of pranayam. So the name itself you can say Bhaya Abhyantar Vishay Akshepi is equal to Keval Kumbhak. Chaturtha is the fourth type of pranayam. आया समझ में? हाँ जी, बाया मतलब एक्सिल और अभ्यंतरा मतलब इनहेल। Inhale, yes. ये विक्षय अक्षेपी मतलब केवल मतलब कुंभक भी नहीं, कुछ भी नहीं, वो मतलब रुकाना है उसको। Right. Now third chapter. ये सारे सूत्र जो है आपके सिलेबस में बाय हार्ट करने के लिए है। अब बाय हार्ट ना हो गए, इनिशियली आप बाय हार्ट करने की कोशिश मत करो, इनिशियली आप समझने की कोशिश करो। फिर नेक्स्ट स्टेप रहेगी कि आप उसको बहुत बार पढ़ो, बहुत बार पढ़ने के बाद फिर वो अपने आप ही बाय हार्ट हो जाएंगे। अब थर्ड, दैट इज विभूतिपाद, उसमें धारणा ध्यान समाधि के सूत्र हैं। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, इसने आपको ध्यान के बारे में बताने के लिए बोला तो सूत्र बोलोगे तो आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप भी अगर लाइफ में कभी कंफ्यूज हो गए धारणा और ध्यान में डिफरेंस क्या है, ओके, कंसंट्रेशन मेडिटेशन में और समाधि, सारी चीजें एक जैसी लगती है। कितने लोगों को लगती है एक जैसी? वेरी गुड, यस, लगनी चाहिए ओके, नहीं तो मेरा रोल ही नहीं रहेगा। चलो, तो धारणा में फर्स्ट सेंटेंस व्हाट दे टॉक अबाउट इज देश बंध चित्तस्य धारणा। ओके, तो धारणा, व्हाट महर्षि पतंजलि इज ट्राइंग टू से इज, अगर हम क्या व्हेनेवर वी थिंक अबाउट द वर्ड कंसंट्रेशन या फोकस का मतलब क्या होता है? इमीडिएटली एक मन में ऐसा कुछ आता है कि पहले तो ऐसे कुछ यहाँ वहां घूम रहा है, फिर फोकस जैसे ही वर्ड आता है इसका मतलब एक ही डायरेक्शन में सब जा रहा है। दैट इज व्हाट इज फोकस अकॉर्डिंग टू आवर आइडिया, परसेप्शन दैट वी हैव। अब फोकस होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? देश होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोकस कर रहे हो तो किस पे फोकस कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर किस पे फोकस कर रहे हो वो पता नहीं है तो इसका मतलब फोकस कभी लाइफ में हो ही नहीं सकता। फोकस पढ़ाई पे कर रहे हो या मेरे को खेलने जाना है उस पे फोकस है, किसी भी चीज खाना बनाना है उसमें फोकस है, फोकस के लिए चीज चाहिए। तो पहली चीज वो महर्षि पतंजलि कहते हैं, उसको बोलते हैं देश। फिर बंध मतलब बांधना,
फोकस जो चीज पे कर रहे हो उसको किसके साथ बांधोगे आप? माइंड के साथ, क्योंकि माइंड ही घूम रहा है ना यहाँ वहाँ, राइट? तो माइंड को उस चीज के साथ बांधना, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे इसको? धारणा। धारणा. वेरी गुड. हु इज दैट स्मार्ट पर्सन? ओके, वेरी गुड. यस, वही है धारणा. मतलब क्या? देश को चित्त के साथ बांधना, राइट? ओके. और ये अभी बांधना पॉसिबल क्यों है? क्योंकि पिछले स्टेप में हमने प्रत्याहार किया था. प्रत्याहार या आसन, प्राणायाम और फिर प्रत्याहार किया था. ये सारी चीजों की वजह से अब आपके ऊपर, बॉडी के ऊपर, ब्रेथ के ऊपर और फिर सेंसेस के ऊपर कंट्रोल आया है. ये कंट्रोल आने के वजह से आप धारणा कर सकते हो, वरना धारणा पॉसिबल नहीं है, राइट? काफी लोग कहते हैं मैं डायरेक्टली मेडिटेशन, हमको योगा नहीं सीखना है, हमको डायरेक्टली मेडिटेशन सिखाओ. अब ओके, अब वो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है. तो आई होप आप सबको मतलब समझ में आया. तो ऐसे जब Sir, I have a question. राइट, What is wrong in if somebody is asking us ki I don't want to learn dharana, but I want to learn meditation. What is why we should not take it positively? yeah, I mean this is an intellectual I mean intellectually this is wrong, because without dharana dhyan is not possible. Okay, how it is not possible? When we say we are not doing dharana, means we don't have a desh. मतलब किस पे फोकस करना है वो है ही नहीं उस बंदे के पास. उसको लाइफ में चाहिए क्या वो उसको पता ही नहीं है. मतलब वो आदमी खुश कभी नहीं हो सकता जिसको पता ही नहीं है वो दुखी है क्यों. आप में से कितने लोग एग्री करते हो? पोस्ट लंच ये समझना डिफिकल्ट है जरा, बट समझ रहा है. वो आदमी हमेशा दुखी रहेगा जिसको पता ही नहीं है कि मैं दुखी क्यों हूं. उसका सबसे प्रॉब्लम है ना. तो धारणा में एक प्रॉब्लम है, उसको देश ही पता नहीं है कि फोकस कहाँ पे करना है. और ये पता ना होने की वजह से वो उसके साथ ध्यान करना है. मतलब क्या? मेरे को उसके साथ एक रूप बनना है. मतलब व्हेन आई से आई एम मेडिटेटिंग ऑन हनुमान, इसका मतलब मैं खुद हनुमान बनने वाला हूँ. I and Hanuman are not two different things. It becomes we are Hanuman. I'm just giving an example. अगर मैं ओम के ऊपर मेडिटेट कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि मैं खुद ओम बनने वाला हूं. मतलब जब हम कहते हैं कि मेरे को ध्यान करना है, उसका मतलब ही ये है कि मेरे को किसी के साथ एक रूप होना है. इट्स यूनियन, नो, कंप्लीटली वन विद. अब किसके साथ करना है वही जिसको पता नहीं है, वो कैसे एक रूप होगा, किसके साथ होगा? इसलिए ध्यान पॉसिबल ही नहीं है धारणा के बगैर. समझ में आया प्रॉब्लम? And so the people they talk मैं about. सिंपल में बताता हूँ. आई गॉट समथिंग. ओके, मेरे को शादी करनी है, अरे पर लड़की नहीं है तो शादी किससे करेगा? तो सब है, हॉल है, गेस्ट है, यू नो, भज्जी है, अरे पर मेन तो लड़की चाहिए ना. यू गॉट द पॉइंट. इसलिए शादी नहीं हो सकती. कार्ड भी छपे हैं, बट लड़की जब तक नहीं है तब तक शादी नहीं हो सकती. Now good? Yeah. Okay. Now, Vaishali madam, please go ahead. No, because people they say no, I do meditation, I do this thing. So this is very silly to now you have made it a very silly thing that what they are saying is, I mean it's a very, they are not understanding what is meditation. Right. That's what you want to say. कर रहे हैं, वो हॉल बुक कर रहे हैं, शादी के कार्ड छपा रहे हैं, बज्जी ला रहे हैं, बट लड़की नहीं है. और वो कहते हैं कि हमने शादी की, है ना, मिठाइयाँ बांट रहे, मतलब शादी हो गई, है ना, सब हो रहा है, बट लड़की नहीं है. तो ये उनके लिए तो हो गया वो शादी, बट हमारे लिए है ही नहीं क्योंकि लड़की नहीं है वहां पे. हमारे लिए मतलब अकॉर्डिंग टू योग सूत्र. गॉट द पॉइंट, नो? तो इसके लिए हमको एजुकेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है. Because this is for our self development also, no? Because we also sometimes say no. Because I generally say that I should not miss meditation, but I think I have been doing dharana only till now. Okay. Then accordingly, then we have to work, and doing dharana is also good. But the next हमको करना क्या है? When we understand this definition,
we have a clarity that what exactly we have to do. क्योंकि आसन में क्या है, आसन में आप स्टेप्स बाहर से देख सकते हो कि हाँ हमको हाथ यहाँ पे लेके जाना है, वहां पे ये करना है, बट ये धारणा और ध्यान में आप देख नहीं सकते, किसी को बाहर से ऑब्जर्व नहीं कर सकते. इसलिए आपको खुद को ही ये समझना पड़ेगा ताकि आप आपके माइंड के थॉट्स को और वो एनवायरनमेंट को इस तरह से क्रिएट करो कि आप ये प्रोसेस अपने अंदर कर पाओ, अपने माइंड के अंदर कर पाओ. राइट? Yes, it's a little tricky, but once you get it, you feel good. How many of you feeling happy? Hello? Yes. So, sir, dharana can now also what we are listening to you with full concentration without any distraction. So now also what we are doing is dharana only, no? Is dharana. Yes, very good, very good. और इसको हम ध्यान कब बोलेंगे? When you know you are so much with this कि यही चीज आप आपके वो मतलब भैया को भी बोल रहे हो, यही चीज सर को भी बता रहे हो, यही चीज आप आपके घर पे मायके पे फोन करोगे वो भी चल रहा है. वो तो मैं जो बोल रहा हूँ ना वो आप सबको बता रहे हो और सब लोग कहे कि व्हाई इज शी टेलिंग दिस. ओके, पर अभी चलो फोन किया है तो बोले. तो ये लेवल आ जाएगी तो हम बोलेंगे कि वैशाली मैडम ने योग सूत्र के ऊपर ध्यान किया है, बिकॉज वैशाली मैडम बिकम्स द योग सूत्र. कि उनको योग सूत्र के अलावा दिख ही नहीं रहा. कोई शादी का न्योता देने आ रहा है तो उनको भी बताया व्हाट इज मैरिज अकॉर्डिंग टू योग, व्हाट इज ध्यान. So this whole month till 29th April I had been to this dharana stage only. Yes, your dharana would be, your desh would be the syllabus of level 2. Yes. Right, right. समझ में? तो ऐसा ये इंटरेस्टिंग है. और ना लाइफ के अलग अलग स्टेजेस पे हमारा देश बदलते रहेगा. ऐसे कुछ नहीं है कि एक ही देश हमेशा होना चाहिए. देश भी बदलता है, इसलिए ध्यान भी आप कभी आप जैसे अभी एग्जाम होने तक यू आर कम्प्लीटली वन विद द सिलेबस, उसके बाद कुछ और होगा. लाइफ में ऐसे प्रकृति है तो थिंग्स आर डायनेमिक. और पीपल विल आस्क, अगर आप ये सिलेबस के साथ एक साथ हो गया, अभी वैशाली मैडम लेवल 2 प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसका मतलब वो खाना नहीं बनाएंगे क्या, या इसका मतलब फिर वो बात नहीं करेगी किसी से? ऐसे नहीं है. तो बट वो जब पढ़ाई करेंगे तो वो कम्प्लीटली शी विल बी वन. बट जब वो बाकी चीजें कर रहे हैं तो फिर वो अपने वर्ल्ड में फिर से जा सकते हैं. तो ऐसा होता है मेडिटेशन. मेडिटेशन अगेन इज अ रॉन्ग वर्ड. आजकल मुझे मेडिटेशन बोलने में भी बहुत प्रॉब्लम होता है, जब से मैंने since I have understood meditation is not dhyan. Okay, so moving to the next is samadhi. Now this is going to be very very interesting. अब इसलिए भी क्योंकि एक तो ऐसे भी बाकी भी चीजें एक्सपीरियंशियल है, बहुत कम टाइम एक्सपीरियंस होता है, बट समाधि तो कभी किया ही नहीं है, तो सिर्फ इमेजिनेशन से हम बताने की कोशिश कर सकते हैं. So there are two things that fulfill the criteria of samadhi. We will say this together. Tadeva arthamatra nirbhasam. तदेव अर्थमात्र निrbhasam. Swarupa shunyam iva samadhi. Swarupa शून्यम इव समाधि. Okay. So first, now we will take a half a minute. ध्यान राहिले. Right. So now first what we will do is we will do an activity where we try to find out the desh of our life. Okay. तो अभी धारणा ध्यान समाधि वो एक साथ कनेक्टेड है, तो पहले हम ये देश को पकड़ेंगे. तो फॉर द नेक्स्ट 30 seconds we will close our eyes and try to think कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके साथ मेरे को कंप्लीटली पूरा एक रूप मतलब एक साथ जुड़ना मेरे को पसंद है. ओके, और ऑनेस्टली उसको ध्यान में रखो. ठीक है. Try to find out that desh for your life. Close your eyes, palms on your knees. Focus and try to find out the desh for your life. Gently rub your palms.
Place them on your eyes. Slowly open your eyes and relax. Okay, thank you. ठीक है, अभी इस टाइम में सबने देश अपना पकड़ा है. Sir, is it possible to have two deshas? नो, उसमें से एक को आपको छोड़ना पड़ेगा. अभी भी you cannot have two girls standing in the marriage hall. You should have one only. Even if you like both, you finally have to choose one. तो अभी के I mean इस लाइफ के लिए तो एक ही पकड़ो. ओके, फिर नेक्स्ट में तो सबको एक पकड़ लिया आपने, एक देश. ओके फाइन. तो अब आगे की प्रोसीजर थोड़ा सा कंपैरेटिवली सिंपल होगी. ओके, तो है ना, जैसे अभी आर्यन जी बता रहे कि मेरे को तो है ना मन में लड्डू फूटा, तो वो दो लड्डू आ जाते हैं. ओके, तो हमको तो बहुत सारे लड्डू पसंद तो है, बट अभी क्या है कि लड्डू दो में से एक चुनना है हमको. तो इसके लिए हमको धारना लगेगा. व्हाई? बिकॉज आवर माइंड कैन बी विथ वन लड्डू एट वन टाइम. इट कैनॉट बी एट बोथ द प्लेसेस, क्योंकि मन एक ही है, वो एक ही के साथ चलेगा. तो अभी आपने वो एक एक्स्ट्रा वाले को निकाल दिया, और जो सिलेक्टेड है, क्या आपने सिलेक्ट आर्यन जी? Yes, sir. ओके, वेरी गुड. तो अब जो आपने मन में सिलेक्ट किया है, उसके साथ आपके मन को पूरी तरह से बांध दो, एकदम टाइट. ओके, सो इफ यू डू दैट, ओके, दैट इज धारणा. अंडरस्टूड? सबने किया, बांध दिया? वेरी गुड. ओके, तो जब तक अभी वो खोलना नहीं है बिल्कुल भी. ओके, लोग क्या कहेंगे, मेरे से होगा नहीं होगा, एवरीथिंग इज इमटेरियल. आप आपने पूरी तरह से उसको बांध दिया है. यू आर इन द स्टेज ऑफ धारणा. अब अभी भी प्रॉब्लम क्या है कि आप और वो चीज अभी भी सेपरेट है. गेट इट? फॉर द वर्ल्ड यू स्टिल आर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. अब आपको इतनी कोशिश करनी है कि आपके जो भी क्वालिटीज है वो आपको छोड़ने हैं, और सारे उस चीज के क्वालिटीज अपने अंदर एब्जॉर्ब करने हैं. ओके, सो विल डू दैट पर्टिकुलर थिंग. आप पूरी आइडेंटिटी भूलनी है. क्लोज योर आईज. आप जो भी आप खुद के बारे में सोचते हो वो पूरी तरह से निकालना है आपके अंदर से, और जिस भी देश के बारे में आपने सोचा है, उस देश के सारे क्वालिटीज को आपके अंदर महसूस करना है. ट्राई टू फिल होल ऑफ योर सेल्फ विद द आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. आपके सांसों में वो ऑब्जेक्ट है, वो देश है. आपके रगों में वही बह रहा है. आपके दिल की धड़कन में भी वही है. आपके दिमाग में भी वही है. हर जगह वही बस गया है. You're completely one. Slowly rub your palms. Warm palms on your eyes. Please relax. Okay. So now you are only the desh. Okay. जो भी आपके मन में आपने डिसाइड किया, आप थे ही नहीं कोई, आप सिर्फ अभी देश रह गए हो. अब आगे की स्टेज क्या है? तदेव अर्थ मात्र निर्भासम. अब हम ऑलरेडी ध्यान की स्टेज में हैं. हम पूरी तरह से देश बन गए हैं. जैसे आर्यन जी ने बताया कि मेरे पास पहले दो थे, अभी वो पूरी तरह से जो एक उन्होंने चुना है वो पूरी तरह से वो है. तो अभी वो आर्यन जी रहे ही नहीं. तो हमारे आर्यन जी अच्छे थे. ओके, क्योंकि वो अभी देश है. ओके, तो अब आगे के स्टेज में क्या होगा? वैशाली मैडम, यू वांट टू से समथिंग? No, actually, my imaginative nature, no,
comes. Yeah. No, when I was thinking that that Shiva Tattva, no? Though I Yes, was yes. thinking all the goodness of Shiva Tattva, and then Wow. again that the fear crept inside. Oh my God, so such a difficult task. Then again I concentrated, because it in my imagination it has all from childhood. It has always been an attractive force personally for me, Shiva and Hanuman. And these days somehow this Buddha also but Shiva has never left. So, but human Yeah. being, God's godliness to creep in, I mean, to absorb. So, Sometimes we get scared of that, yes, the yes, doubt yes. creeps inside. So that's why I laugh. Yes, yes, yes. How we are afraid of being so good, no? Because Yes, very true. we have so many limiting beliefs and resistance. And those are very comforts for us. Those are comforts. So how we are so scared of, Being it, believing in it. yeah, getting into that discomfort. But one, no, now I practice this, no? Okay, I'll take this discomfort. So nowadays, no, I have started writing down like this small chit, and I'm putting it on a mirror. This is the biggest limiting block, first number. So if I am doing it for about 21 days, then I pat myself. Right. Very good. So Very good. this is one activity I have started doing. Very good. So I am very scared of cold things, no? Cold environment, Prakriti wise. I don't like cold at all. So I thought, but then it comes into my discipline. Sometimes I find a comfort zone when it is very cold. And most of the time it is very cold. This place is very cold. Even Most of the now, time what is the temperature now? Now the temperature is? because it rained yesterday night heavily here. It was stormy. So again, for me, it is very cold. It is, I think right now it is 3. 3. Yeah. Wow. It's very cold. Very, very cold. Yeah, Right. no, for me it is very cold. And sometimes the things which are very discomforting for you, you attract those things only. Yes. And, They become and that fish. time is the biggest taste for that is the biggest taste, I believe, Yes. True, in true. following the Yama Niyam Shista all, So Very what true. I have done now, I have read this book called David Goggins, It Hurts. So what he says, you take a challenge, you put it on a mirror, your biggest resistance, which is coming as an obstacle in your advancement in life. So this I have done. So I put it on a mirror that come what may, if it is cold, so I'll go for running every day. I'll get up and I'll do this. There's a portion. So it has been 8th day. Wow. I took Good. up a challenge. So far it is successful. Let's see. Yes, yes, yes. So, It will. So during Dhyan also this came, no, that Shiva, and again he's sitting on the snowy mountain, and then I got scared. So I laughed. Yes, yes, yes. Because it is But good. again a discomfortable zone for me. Yeah. But now exactly this is where Maharishi Patanjali takes us a step ahead. And that's very beautiful. Okay. So everybody, what Maharishi Patanjali is saying is, whether it is the Shiv Tattva or, for example, Aryanji has talked about the Desh. Now that Desh is now going to undergo a very tremendous amount of change. What we call it as Samadhi. What is going to happen is Tadeva Artha Matra Nirbhasam. So even the qualities of that Desh or the Shiv Tattva is also going to go away. Means the name Shiv Tattva itself will go away. Or whenever we listen or hear the word Shiv Tattva, something comes in your mind. So that is also going to go away.
So because that scares us, no. I'm just a human. So even that is going to go away. So when that goes away, Swarupa Shunyam, what remains is nothing. So even that, when it goes away, what remains? Shunya, nothing. Because there's no form. You cannot call it anything. You cannot feel anything. And that what remains, nothing, is the idea of Samadhi. Because Aryanji had already left in Dhyan. Now that Desh is also not having any form. तो मतलब आर्यन जी ने क्या सोचा था, किसके बारे में सोचा था, वो भी चला गया है. उसको ना कुछ नाम है, ना उसकी कोई क्वालिटी है. और फिर क्या रहता है? Only experience remains, and that experience is the samadhi, the ultimate thing. आज भी दीदी लता मंगेशकर जी नहीं है, okay, but still the moment you hear some melody, you hear the name, some emotion comes in your mind. How many of you? Yeah. तो आपके अंदर जो कुछ थोड़ा बहुत आता है, that is समाधि of लता मंगेशकर. तो आज वो फिजिकल फॉर्म में तो नहीं है, बट हमारे अंदर जो कुछ थोड़ा बहुत आता है, वो उनका रियल स्वरूप है. So through us, she is still alive. And that's the idea of samadhi. Yeah. It's very, very deep. Maybe I'm not able to give words, but I hope a little bit idea you are able to get and have a little bit differentiation between the stages of dharana, dhyan and samadhi. थोड़ा बहुत समझ में आ गया? थोड़ा बहुत, पूरा समझ में मुझे भी नहीं आया है. Sir, this is Bauddha Darshana's Shunyavad or Shunyata Samadhi. Yes. That's that we can call it as complementing to this idea of samadhi, because they also talk about nirvana. Yeah. So in different aspects, the idea of nothingness is being expressed, because it's only through nothingness, shunya, that you can experience everything. So nothingness and oneness complementary to each other. This Complement oneness. to each other. Yes. To reach oneness, Atman or Brahman, you have to find nothingness. Very deep. Very deep. Yeah. So if you are getting lost, then just by heart the sutras. But some point of your life, you can meditate on these sutras. They are very, very powerful. Yeah. You can imagine we have just taken 3-4 sutras out of the 195 sutras. If we meditate on each of the Yoga Sutras, they are really so deep that it really has the potential to change the course of our life. Okay, and every profession, they will change the economics, they will change the finance, they will change the management. Everything can be changed. That's the potential of Yoga Sutra. So, Trayam Ekatra Sanyamaham. All these three together, that's why it is important that Dharana is linked with Dhyan, Dhyan is linked with Samadhi. Trayam Ekatra Sanyamaham. These three together is Sanyam. Yeah. And they go hand in hand, all go hand in hand. Because the first other is what we can do. We are expected to do something. But here, we don't have to do anything. We just have to be a drashta and let things happen with you. Because you cannot focus, you cannot meditate, you cannot go into samadhi. You just have to let it happen on you. It's like lying down for the surgery. What does the patient do on the surgical table in operation theater? Nothing. But he allows the anesthetist to give anesthesia. Otherwise, will the surgery happen? No. So that is exactly what our role is. Role as a practitioner in Sanyam. That if you practice the first part of Bhairanga Yoga, then there are certain things that are going to happen in you, and you should allow these things to happen to you. That's the difference between Bhairanga Yoga and Antaranga Yoga. Interesting? And now tell me, can you go into Dhyan? With this philosophy, no, because Dhyan will happen to you. Okay. Dhyan will embrace you. You cannot
go into dhyan will come to you. It's that way. Yeah. So these aspects become more difficult because you have to see to it that your asana, pranayam, pratyahar is at such a great level that dharana, dhyan, samadhi happens to you. If you don't practice yam niyam to pratyahar, then dharana, dhyan, samadhi won't happen to you. That is what Maharishi Patanjali says. They both complement each other. मतलब प्राइमरी स्कूल ही पास नहीं करे तो सेकेंडरी स्कूल कैसे जाओगे? कुछ लोग कहते हैं मेरे को डायरेक्ट 10th पास होना है, तो वैसे नहीं हो सकता. मेरे को डायरेक्ट समाधि चाहिए, ऐसे नहीं हो सकता. You have to go through all these stages. But yeah, you have, we talked about there are some great legends who are born. Swami Vivekananda ji and all great legends. There are some legends who directly are born, like Ramana Maharshi we talk, Jivan Mukta Samadhi. So they are born and they experience they are in the stage of Samadhi right now. But those are exceptionals. We cannot always say that we are those. For us, for us, not even for us, this what they say. Ashtanga Yoga is also for very high for us. But according to Maharishi Patanjali, that is for the lowest. You know that? Then what is for the highest? Abhyas Vairagya. Abhyas Vairagya is for the highest creamy layer. उसके बाद जो एवरेज जो बच्चे हैं उनके लिए क्रिया योग, और जो एकदम बुद्धू लोग हैं उनके लिए अष्टांग योग है. और हमको अष्टांग योग भी इतना डिफिकल्ट है हमारे लिए, और हठ योग भी डिफिकल्ट हो गया, तो हमारे लिए बहुत 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 डाइल्यूट करते करते अभी तो. बट स्टिल नोइंग दिस हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि योग कितना डीप है. okay? अभी तो हमारी शुरुआत हुई है. सो नाउ yeah, that's what is the role of yoga? Life. Okay. What we feel is very much simple, but that's how, it's very, very complex. And sometimes you get lost in that. And that's where the clarity of life is very important. So yoga plays an important role in achieving that. अब हम आगे देखेंगे. Okay. So I think it's the time for practical also. Yeah. तो चित्त विक्षेप हम कंप्लीट करेंगे और फिर हम प्रैक्टिकल देखेंगे. आई गेस चित्त विक्षेप देखा था क्या हमने? ये कॉम नहीं देखा? ओके. सो बिफोर चित्त विक्षेप वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज ईश्वर. तो दिस इज आल्सो वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन. अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज हु इज गॉड, तो आई डोंट थिंक वी कैन 1 घंटा तो बात करेंगे, बट फिर भी बता नहीं पाएंगे व्हाट इज गॉड. बट महर्षि पतंजलि इज वेरी वेरी स्पेसिफिक. ही डिफाइंस ईश्वर. अकॉर्डिंग टू हिम, क्लेश कर्म विपाक आशय है अपरामुष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः. Even if you don't remember the definition, just understand Ishwar is a special Purush, Purush Vishesh, special Purush. Okay, we all are consciousness. Consciousness is Purusha. So who is Ishwar? Purush only, consciousness, but he is a special Purush. Why? Because he is free from 2 things. He does not have 2 problems. What we have. So for the first problem that we all have is kleshas. But Ishwar has no kleshas. And second is the karma vipak ashay. Vipak is phal. So we do things to get something. I study to pass. I teach to get money. So this is why we do things, and so we are ordinary people. How do you define Ishwar? Ishwar is the one who is free from the phal of the karma. Okay. The special Purush is free from the fruits of the karma. Yeah. So if anything or anybody is without the kleshas or without the fruits of the karma, they fulfill the criteria of being Ishwar. तो अगर कल से आपको ईगो नहीं है, आप किसी को प्यार नहीं करते, हेट भी नहीं करते, आपको मरने का डर नहीं है, ये जो भी पंच क्लेश अविद्या अस्मिता राग द्वेष अविनेश चल गए, and you don't expect any karma फल from your karma, that moment you will be called as Ishwar. Anybody wants to be Ishwar? भगवान बनना है किसको? Yeah, Hina ji, very good. Yeah, honestly, इच्छा तो है. Yes. Very good. इच्छा है तो कुछ प्रयत्न, efforts तो हो गए. Very good. Very good. But अभी आज ये definition पढ़ के आपको एटलीस्ट थोड़ा गाइडलाइंस तो मिल गए कि भगवान कैसे बना जाता है. Okay. Good. So this Ishwari Tattva we say, no? Ishwari Tattva. Yes, yes, Ishwariya yes. Tattva. Anta, Godliness. Mahatma, godliness, Okay. yes. So godliness is free from panchakleshas, Yes.
it is free from accumulation of fruits of karma. That is Fruits of godliness. karma. Godliness, absolutely. He has specifically defined 2 things. That's it. No Mm. confusion. Mm. Yeah. That's So, why we love Patanjali. So ultimate purpose is this only. Hmm? Ultimate purpose. Yes, yes, yes. When you achieve this, automatically samadhi will happen. Hmm. So, Right? sir, Jiva- this Panchakleshas, you said neutral. I mean, free from, so it's kind of emotional mastery only. Yes, yes. You can experience. No? Yes. We Yes, can absolutely. experience emotional Yeah. mastery. Okay. Yes, yes. But it is very much needed, emotional Yes. mastery. Okay. Because sometimes we fall into a trap of emotions and it is a wastage of energy Very and true. our Very true. sources. Hmm. Yes. And And either awareness way, of this both the ways, helps. both the ways, even if you are overwhelmed also, or even if you're, I mean, both the ways, happiness and unhappiness, both the ways it is wastage of energy. Very Hmm. true. Very So true. Vairagya is very important. Right. Okay. And accumulation of fruits of karma. Okay. So what is this? This means that you do not expect any fruits, nor positive nor negative, from what you are doing, because you are focused on what you are doing. Yeah. So this is, once we achieve oneness, there will be no expectations, no? While No, to focusing. achieve oneness, you should have this habit. Right. So in a way, it is Abhyas Vairagya only. So everything what you find is actually, Ultimately, words, Maharishi accumulates, Patanjali is saying ultimately the same the thing. direction is Abhyas Vairagya. Yes, yes, yes. That's the reason why he is Detachment. considered Abhyas Vairagya as the highest. The rest are all, कि हाँ बच्चे सब्जी नहीं खा रहे तो पराठा बनाओ. तो हमको अभ्यास वैराग्य नहीं आता है, चलो मैं तुमको सिंपल बताता हूँ, यम नियम आसन. बट एनीवेज ये सारे करने से वही होने वाला है, अभ्यास वैराग्य. But sir, some in traces we do follow these. I mean, it's not that we in traces. Sometimes, I mean, we do follow Yes. to some level. I'm not saying. Yes, absolutely. And all that's the the reason levels. we all are here together doing this course. नहीं तो आप, I tell you, guarantee how many people can sit in front of the camera and listen to this. उनको बोलोगे 2,000 देता हूँ, बैठो कैमरे के सामने, तो भी भाग जाएंगे. वो तुम्हारे पास ही रोको बोलेंगे पैसे, क्योंकि ये सुनना भी बहुत डिफिकल्ट है. या how many of you agree? आपके रिलेटिव्स, आपके घर वालों को बिठाओ कैमरे के सामने 2 घंटा ये लेवल 2 के सेशन, कितने लोग कर पाएंगे आपको लगता है? घर वाले या आपके दोस्त? नो, इट्स नॉट सो सिंपल. बहुत डिफिकल्ट है. जो हम, तो आप जो बैठे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू एवरीबडी unmute and clap for yourself कि आपने बहुत बड़ी चीज की. Absolutely, very good. You have to appreciate yourself. Very true, very true. और ऊपर से no, you have more desire कि मेरे को और ज्यादा करना है. So that's a great thing. So we all are divine elements, okay? And as Vaishali madam said कि हम ये already थोड़ा थोड़ा practice कर रहे हैं. Yes, practice कर ही रहे हैं. The proof itself is कि हम सामने बैठे, ये हमारा proof है. बट सिर्फ हम अब तक खुद को ईश्वर नहीं कह सकते, क्योंकि हम वो फिर अभी थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं. जिस दिन पूरा करने लगेंगे उस दिन आपको कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आप तो ईश्वर ही बन गए. मंदिर बनाना चालू करो आपके राम का. तो दैट्स हाउ. मतलब वो भी अब मंदिर बनाना चालू कर गया, मतलब फिर से ईश्वर नहीं, मतलब उस पोजीशन से नीचे आ गए. इतना वो टफ है. Okay. Like we don't discuss from our personal experiences. Like one day we go for a Ridling ceremony, Pushpa Chakra Arpan kar dete. We come back and we don't discuss, me and my husband, about that. We completely get detached to it. We don't discuss the glory behind it or also the sadness behind it. It's just the silence. True. Very true. Very true. So that's where we can find the element of divinity.
I mean, Yeah. we don't give a more directions and more paragraphs and sentences attached to it. It is the job finished. Absolutely, very true. It sounds brutal it sounds very unemotional for us, but that is how we can perform our duties. Very true, very true. Yeah, that's what is karma vipak ashay. Yeah, no attachment of any good or the bad aspects. Yeah, very true, very true. And for this Ishwar Tattva, what Maharshi Patanjali describes is, you learn to surrender to anyone or anywhere you find this Tattva, this principle acting, you learn to surrender here. That idea is Ishwar Pranidhan. You might find this in the studies, you might find this in a person, you might find this in a situation. Whatever it is, that becomes your Ishwar. So the idea of Ishwar is very different than what we think about, the structure of the god, temple, with hands, all these kind of things. Here, the idea of Ishwar is very much beyond. And that's the reason, though the word Ishwar Pranidhan is used or Ishwar is used, we don't call it as religious. Now, some people say, why yoga is not religious? We have, Bhagavad Gita, this, that, all this, Krishna is there, Hindu gods are there. But still, why it is not religious is because the idea of Maharshi Patanjali of Ishwar is not limited to the words or the forms of Krishna or something like that. It's beyond that. It's abstract, So and surrendering to this concept is Ishwar Pranidhan, not to a particular, deity or something like that. Those who cannot do Abhyas Vairagya, for them, they have given this option of Ishwar Pranidhan. Now, next is the Antarayas. We have to achieve Ishwar Pranidhan, you have Pranav Jap, Omkar chanting. So Omkar chanting will remove, it will help you to achieve Samadhi, and also will remove the distractions from life. Now let's try to have the 9 distractions that we have in our life. What are those? The first is Vyadhi, physical mental illnesses. And why in yoga is important? Because we have yoga, so many yoga therapy and all these things, where through diet modifications, through Shuddhi Kriyas, through asanas, through pranayam and all, we are working on the Vyadhis. Then Styan, mental lethargy. Yeah, we want to do, but we still don't do. Many of the time in our life, this happens. So that problem in our life is Styan. What can we do in yoga for that? There are many practices, regular practices, pranayam, and having swadhyay. That is important to reduce Styan. Sanshay, many times we doubt, am I really capable of that? Right? So here what is important again for Sanshay? Again, the sadhak tattvas like utsaha, sahas, these are very important. Satsang is also very important. Janasangha parityag is very important. Prayas, yes, efforts are very important. Abhyas is important. Then we have pramad. Pramad is, there are so many things I want to do. जैसे हमने अभी बोला कि मेरे पास 2 देश है, बट एक समय में एक ही देश सिलेक्ट करना पड़ेगा. जब पहला खत्म हो जाएगा तो दूसरे देश के पास जाओ. Okay, so in that way, if we do prioritize in our life, then we are able to achieve a lot of things. If we cannot prioritize, then we feel we are very busy, but we don't do anything. आप में से कितने लोगों ने देखा है कि कुछ लोग बिजी होने की एक्टिंग करते हैं और कुछ लोग बहुत काम होते हुए भी बहुत सारा समय निकाल पाते हैं. ऐसा क्यों होता है? Is because some people have this problem of प्रमाद. मतलब उनको समझ में नहीं आता है कि शुरू कहाँ से करें और वहीं पे रुक जाते हैं. फिर वो बहुत सारा काम है, ऐसे ही उनका जब चालू रहता है. अरे पर काम शुरू तो कर, and so many people give about, the APJ Abdul Kalam वगैरह, उनके बुक्स में आप देखोगे कि आप एक 4 quadrants बनाओ, तो then you have the एक quadrant में, important but not urgent, important and urgent. Then you have less important but urgent, and not important and not urgent also. तो इस तरह से हर एक ने अपने अपने तरीके से इन्वेंट किए हैं किसको, ये प्रमाद को बीट करने के लिए अपने अपने टेक्निक से. अब हर टेक्निक हर जगह पे अप्लाई होगी ऐसे नहीं, बट आपको जो टेक्निक सूट करती है वो अप्लाई करो और इससे आपके प्रमाद से छुटकारा पाओ. दैट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. What is this? This is nothing but this pramad, pramad is about time management and yes. So, but our Yes. ancestors, our previous generations, they have more time. It doesn't So mean they they manage will well, not. no? Yeah,
Yeah, टाइम they रिसोर्सेस सब वो मैनेज करते थे, इसलिए वो बच जाता था फिर भी। Hmm. जैसे मान लो सी सैलरी, हमारे पेरेंट्स को सैलरी कितनी थी, कम थी, हमारी सैलरी ज्यादा है, बट वो उसमें से भी कुछ सेविंग्स करते थे। अभी के जनरेशन की इतनी बड़ी सैलरी है फिर भी उनको लोन लेना पड़ता है, यू नो, एट द एंड ऑफ द मंथ देयर इज स्टिल इनएडिक्वेट। नाउ दैट इज द सेम थिंग, यू नो, आवर प्रीवियस जनरेशन हैड द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट, ओके, एंड नाउ वी हैव समवॉट, वी आर नॉट वेरी गुड एट दैट। तो ये हमको सीखना पड़ेगा, नहीं आता तो सीखेंगे ऐसे। But Also, no, Samshay was not there. Much doubts were not very much clear about. That's why they could manage their time. I mean, our grandfathers and yeah. So maybe their Ishwar Pranidhan, for that doing the japa, all this thing was more prominent. इसके लिए फिर उनका संशय कम था, तो हमको अभी फिर ये बढ़ाना पड़ेगा ताकि हमारे संशय कम हो जाए। हाँ, सेटिस्फैक्शन को भी हम क्या कहते हैं, नियम में आता है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इसका मतलब हम सिर्फ आसन के ही ऊपर फोकस नहीं करना है, हमको ये रोज पूछना है, एम आई मोर सेटिस्फाइड देन यस्टरडे, यू नो, एम आई डूइंग मोर एफर्ट्स, मोर तपस देन यस्टरडे, यू नो। तो हमने रोज खुद को पूछना है कि उन लेवल पे हम थोड़ा बेहतर बन पाए क्या, नॉट लाइक आई एम कंप्लीटली, बट थोड़ा बेहतर है क्या। इफ द आंसर अंदर से आता है कि हाँ ओके ओके अच्छा है, गुड, तो देन इट इज अ गुड साइन। बिकॉज अंदर से जो आवाज आती है, वी ऑल कैन फूल द वर्ल्ड बट वी कैन नॉट फूल आवरसेल्व्स। तो अंदर से आपको एक थोड़ा तो कुछ है ना सिग्नल तो मिलता है, तो उस सिग्नल को सिर्फ फॉलो करो, दैट इज हेल्पफुल। द नेक्स्ट इज आलस्य। Yeah, this is, I mean, I don't need to explain, we all know inside us. तो हमको क्या क्या है वो हम सिर्फ देखें और उसके ऊपर काम चालू करें। एंड द ओनली थिंग इज बी मॉडरेट, बहुत ज्यादा खुद को कोसे मत और बहुत ही खुद को लूज भी ना छोड़े, बीच में जो भी मिडिल पाथ है उसको फॉलो करें। अविरति, अगेन अटैचमेंट्स टू सेंस ऑब्जेक्ट्स इज देयर। अविरति इज अगेन देयर एज राग आल्सो इन द क्लेशस, ओके। या फिर अभ्यास वैराग्य, तो ये जो वैराग्य है दैट इज द सोल्यूशन फॉर अविरति। तो हमको भी, और आसन का भी है, वही है। या लास्ट टाइम आई थिंक मैंने लेवल 3 में पूछा था ना कि ना, है ना, मैंने लेवल 3 में एक क्वेश्चन पूछा था कि आसन 2 वर्ड से बना है, अस एंड ना। ना तो सबको पता है ना, ना बोलना आता है ना सबको, ना मतलब नहीं, नो। बट हर टाइम हम आसन करते हैं तो हम खुद को ना बोलने के लिए सिखाते हैं। अब किसको ना बोलना है? अस को। अस किस वर्ड से आता है? आसक्ति। आसक्ति यानी आसक्ति यानी क्या होती है? मुझे किस चीज की आसक्ति है? अटैचमेंट, एब्सोल्युटली। तो हम सभी को बहुत सारी चीजों से अटैचमेंट होती है, अलग अलग चीजों। किसी को पैसे के साथ है, किसी को नाम के साथ है, किसी को कोई पोजीशन की है, किसी को यू नो ऑल दिस खाने पीने की चीजों से है। हम सबको कुछ ना कुछ चीजों से है। तो हर टाइम हम आसन करते हैं तो हम ये खुद को रिमाइंड करते हैं कि मेरे को उस चीज से थोड़ा सा दूर होना है। और अगर आंसर हाँ आता है कि मैं कल से आज थोड़ा बेहतर हूँ, देन इट इज प्रोग्रेस इन आसन। इस तरह से भी हम देख सकते हैं उसको। तो अविरति, प्रैक्टिस ऑफ आसन, प्रैक्टिस ऑफ वैराग्य इज अ वे ऑफ कमिंग आउट ऑफ अविरति। भ्रांति दर्शन, भ्रांति इज इल्यूजन। Okay, now this is completely what we talk about avidya. Because of avidya there is bhranti darshan which is similar to viparya also. और उससे हम पता है कि वो मेरे बारे में ऐसे सोचता है, नहीं मैं I won't be able to do that because this happened in that happened. तो हम बहुत सारी चीजों को कुछ भी कनेक्ट कर लेते हैं और फिर माइंड में एक ब्लॉक बन जाता है। और फिर मतलब मेरे को हमेशा एक कहानी याद आती है। एक टूरिस्ट होता है और वो थाईलैंड जाता है, ऐसे ही बड़ा एलिफेंट का फार्म होता है, और वो देखता है कि सारे एलिफेंट खुले पड़े हैं, कोई भाग रहा नहीं है, कोई भागने की कोशिश भी नहीं कर रहा। तो पूछता है कि तुम्हारे ये जो इतने बड़े बड़े हाथी है वो एक ही जगह पे रुके हैं, तो वो कभी मतलब भाग के नहीं चले जाते क्या? और तुमने तो उसको एक सिर्फ है ना एक छोटा सा क्या कहते हैं उसको, एक छोटा सा रस्सी बांधा है। तो ये इतना बड़ा हाथी है कि इतने सारे हाथी एक छोटी सी रस्सी से बांधे हैं, वो कभी भी भाग जा सकते हैं। तो वो कहते हैं नहीं, वो कभी नहीं भागेंगे। तो कहते ऐसे कैसे? तो कहते क्योंकि ये जब हाथी जब बच्चे थे तो उनको इसी रस्सी से बांधा था। बचपन में उन्होंने बहुत ट्राई किया भागने का, बट वो बच्चे थे ना, एक दो दिन के बच्चे, हाथी के बच्चे फिर भी बड़े रहते हैं, बट वो 1-2 दिन के बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। तो उन्होंने बहुत कोशिश की, कोशिश कर करके थक गए।
अभी उसके बाद में उन्होंने कभी इतने बड़े हो गए 15-20 साल के, अब तो उन्होंने कोई कोशिश ही नहीं की क्योंकि अभी भी उनको लगता है कि वो रस्सी से छूट नहीं पाएंगे। तो हमारे भी लाइफ में ऐसे हुआ है क्या? हम आपके लाइफ में होता है ऐसे? आपने देखा है किसी को आप बोलते हो अरे नहीं तू ट्राई कर तो सही, नहीं मैंने किया था पर वो नहीं होता है मुझसे। वो कभी लाइफ में एक बार कभी एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद लाइफ में वो कभी गाड़ी को हाथ नहीं लगाता। पता है ऐसे? यस सर, बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है यार Yes, आपको। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके बच्चों के साथ ऐसे हो सकता है yes, या आपके फ्रेंड के साथ आप तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोई फॉर एग्जांपल किसी का जॉइंट पेन है, किसी को कुछ कंडीशन है, तो बोलेगा यार नहीं मैंने वो ट्राई किया था नहीं होता, है ना। तो एक बार वो बैठ गया नहीं होता है ना, तो नहीं होता। सो दैट्स व्हाट भ्रांति दर्शन इज वेरी डेंजरस थिंग। एंड वो कहते हैं कि सोए को उठाना इजी है बट सोने की एक्टिंग कर रहा है वो इम्पॉसिबल। तो ये मेंटल ब्लॉक को निकालना बहुत डिफिकल्ट है। दैट इज, अगर वो नहीं निकला तो आप एफर्ट्स लेके भी कुछ फायदा नहीं होता। नेक्स्ट इज अलब्ध भूमिकत्व। अलब्ध भूमिकत्व इज नॉन अटेनमेंट, या कुछ लोग तो डिफिकल्ट है इसलिए एफर्ट्स ही नहीं लेते। एंड अनवस्थित तत्व इज एफर्ट्स लेके अचीव करते हैं बट कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से फिर से दे lose these things. So non-attainment of samadhi and non-maintenance of samadhi both are अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित तत्व। अब यहाँ पे ये सारे जो 9 अंतराय बताए हैं उनके लिए उन्होंने बताया है that ओमकार प्रणव जाप is the way with Om chanting you can eliminate all these sufferings. That is the answer according to Maharishi Patanjali. Okay. So with this we will end the session. End the session means there is still some time. We can do some pranayam practice today, but pranayam हमने सुबह ही किया। Today what we will do is, we did pranayam but some people were not there, so what we will do is we will try to integrate it with the kumbhak part which is a little difficult and try to raise the practice. अब ये अंतराय का ही एग्जाम्पल है। कैसे अंतराय का एग्जाम्पल है? नेक्स्ट जो पिक्चर दिख रहा है आपको, यस, इज क्रिकेट एन एग्जाम्पल ऑफ अंतराय? यस, क्योंकि आपको सब लोग आउट करने के लिए बैठे हैं, हाँ, या आपको 6 मारने के लिए बैठे हैं। सब देखे बैठेंगे, आप 6 मारोगे और वाह 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 तालियां बजाएंगे। ऐसे होता है, आपने देखा है सब लोग तालियां बजाते हैं जब ये बैट्समैन 6 मारता है, तो बाकी सारे प्लेयर नहीं मारता तो कितनी रिली पड़ती है इनको। हाँ, जब 6 नहीं मारते हारते रहते तो कितनी डांट पड़ती है इनको। वो नहीं देखते कि जीतने वाले भी यही है, तो वो ऐसा नहीं सोचते ना, नहीं सोचते, राइट। क्योंकि है ही वैसा, गेम ही वैसा है कि इन सबका काम ही है, इसको ये जो प्लेयर है उसको आउट करना उनका काम ही है, कर्म है ना उनका, तो इनको जी जान लगानी है इसको आउट करने के लिए। तो यही आपके लाइफ में अगर कोई टांग अड़ा रहा है तो ये उनका काम है, अगर नहीं करेगा तो ये कुछ प्रॉब्लम है, हाँ? तो आपके दोस्त अगर ताने नहीं मारेंगे तो शायद आपने गलत दोस्त पा लिए। ओके, तो वो आजू बाजू के लोगों का, दोस्तों का, है ना, वो काम ही है कि तुमको आउट कैसे करेंगे। You got it? But आप है कि you have to see to it, you have to listen। वो बाकी सब चिल्लाएंगे पीछे से आउट आउट करके, पर आपको सिर्फ अंपायर के ऊपर ध्यान देना है कि यार सही में मैं आउट हूँ या नहीं हूँ, है ना। तो आपको आपकी गट फीलिंग के ऊपर ध्यान देना है, एंड वी हैव टू सी टू इट दैट यू कीप हिटिंग द सिक्सेस एंड कीप रनिंग बिटवीन द विकेट्स। ठीक है, तो अंतराय भी ऐसे ही है, बट आपको योग साधना से आपको हमेशा रन बनाते रहने हैं। या इंटरेस्टिंग, ऐसे ही है। तो द सोल्यूशन इज प्रतिपक्ष भावनम। यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव, क्योंकि ये निगेटिव थिंकिंग वगैरह ये शब्द ये योगा में भी है। व्हाट इज निगेटिव थिंकिंग कॉल्ड? वितर्क। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, ऐसे योग सूत्र में लिखा है। मतलब निगेटिव थॉट्स जो आते हैं उनको हम प्रतिपक्ष भावनम से डिफीट कर सकते हैं। वही तो करते हैं ना हम लोग। अब ये निगेटिव जो थॉट्स आते हैं उसको, जैसे मैडम ने बताया कि you are putting all those negative thoughts in front of you. Why? So that you don't lose the track and you develop the positive attitude to defeat them. उसको कहते हैं प्रतिपक्ष भावना। What is this प्रतिपक्ष भावना? The positive affirmations that you create to defeat the negative thoughts that arise in your mind and try to pull you down is the sutra. कितना ब्यूटीफुल बताया है। हमको लगता है कि आजकल ही साइकोलॉजी डेवलप हो गया है, तो योग सूत्र में लिखा है, और मैं सूत्र भी बता रहा हूँ, तो आपको ऐसे नहीं लगे तो कुछ भी फेंक रहे हैं। ओके,
ना, सेकेंड चैप्टर 33rd सूत्र, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। यहाँ पे सिर्फ वर्ड वितर्क लिखा है, नेगेटिव थिंकिंग, और नेगेटिव थिंकिंग को आप ओवरकम कैसे करोगे वो बताया पतंजलि ने, कैसे, प्रतिपक्ष भावनम विद द पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग, ये बहुत सिंपल हो गया। प्रति मतलब अपोजिट, पक्ष मतलब सिचुएशन। अब मेरे को गुस्सा आया है, तो गुस्से के अपोजिट सिचुएशन क्या है, प्यार। हाँ, तो अगर मैं किसी को मार रहा हूं, तो अब मेरे को सिर्फ कोई पकड़ेगा तो मेरा गुस्सा तो वैसे ही रहा ना। तो अब मेरे को इम्पोर्टेंट क्या है, मेरे को खुद को अगर कंट्रोल करना है, तो मेरे अंदर वो मैं क्यों मार रहा हूँ, क्योंकि मेरे को गुस्सा आया है। गुस्सा क्यों आया है उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। तो गुस्सा इसलिए आया है क्योंकि किसी ने कुछ गलत किया है। अब उसने कुछ गलत किया है, पर उसने कुछ कभी लाइफ में सही भी किया होगा, राइट। अब वो सही क्या क्या किया है वो सोचो। अब उसने जो जो सही किया है, मेरे को हेल्प की है, वो सोचोगे तो मेरे अंदर कौन सा इमोशन आएगा, आई विल लाइक दैट पर्सन, तो प्यार आएगा। तो जब प्यार डेवलप हो जाएगा तभी भी मैं उसको जाके मारूंगा क्या, नहीं। तो अपने आप मेरा गुस्सा भी शांत हो जाएगा और मैं उसको प्यार से समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई ये प्रॉब्लम तू कर रहा है, यू नो, दैट इज द थिंग व्हाई इट इज बिकमिंग अ ट्रबल, तो अवॉइड दिस थिंग्स। तो दिस इन दिस वे इट्स सो 2300 साल पहले इतना डीप में सोचना इतना आसान नहीं था। आप में से कितने लोग अग्री करोगे? हम कहते हैं कि हम बहुत स्मार्ट हो गए। Sir, no, because we take away the credit of, because it was ancient. I think they were more pure in their research and understanding. pure, no? Why should we take And so away the credit? compact. Yeah, Yes. because the things which we called science, ना ये विज्ञान है, that is I think more regressive than progressive, which I believe. अभी ये है ना negative thinking, ये है ना negative thinking, and you think you give a time to yourself, किसी के बारे में negative आया तो आजकल भी साइकोलॉजी में वही बोलते हैं ना, you process your emotions, you give time to process your emotion, in spite of reacting you respond. तो रिस्पॉन्ड तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा if we give time, if we keep some संयम, no, patience, okay, for processing the emotions. हम लोग तो ये तो लीडरशिप इसमें भी देखते हैं ना मॉड्यूल्स में। I was reading my husband's book, वो उसका ट्रेनिंग बुक, तो उसमें भी लिखा है कि एंगर और इम्पेशंस इन लीडरशिप मॉड्यूल, तो यू प्रोसेस योर इमोशंस फर्स्ट। तो ये तो वही है ना, राइट। और ये अगर कैसा होगा कि अगर हम ये उन सारे मॉड्यूल्स में अगर ये योग सूत्र की बातें अगर आ जाए, तो हम लोग यू नो वी विल सो कॉन्फिडेंट अबाउट आवरसेल्व्स कि दिस इज व्हाट वी आर। क्योंकि हम यू नो क्या है कि ये चीजें हम हजारों सालों से हमारे अंदर, हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे पूर्वजों की लाइफस्टाइल में है। तो ये हमको एब्जॉर्ब करना बहुत इजी है कंपेयर टू द वेस्टर्न टेम्पलेट्स दैट आर बीइंग क्रिएटेड। मतलब वो गलत है ऐसे नहीं है, बट ये हम नेचुरली एब्जॉर्ब, जैसे हम कहते हैं, हम आयुर्वेद में भी कहते हैं कि आपके आजू बाजू जो फल आ रहे हैं वो आप खाओगे तो ज्यादा हेल्दी रहेंगे, क्योंकि वो उसी मिट्टी से में ग्रो हुए हैं, रादर देन यू बाय सम हेल्दी इंपोर्टेड फ्रूट्स, बिकॉज दे माइट बी गुड बट इट माइट नॉट सूट यू। ऐसा है। तो ये चीजें हम किस तरह से एजुकेशन में, हम किस तरह से हमारे ऑक्यूपेशन में थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करें, ये अभी हमारा आई फील इट्स नाउ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एंड इट इज पॉसिबल, छोटी छोटी बातें हैं, और थोड़ा थोड़ा अगर हम इसको इंसर्ट करेंगे ना, तो धीरे धीरे 5-10 साल में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। एंड दैट्स वेयर आई फील नेशनल प्रैक्टिकल है, दिस इज वेरी प्रैक्टिकल, ये इतना प्रैक्टिकल है इवन इन डे टू डे लाइफ, in our relationships, even in our professional life. वो बोलते हैं ना एंगर की भी अलग अलग टाइप्स है। why we talk in a language of taunt, ना, हम लोगों को टॉन्ट क्यों मारते हैं? बिकॉज उस इंसिडेंट्स को लेकर हमें अग्रेशन होता है, ओनली वी डोंट ओपनली से इट डायरेक्टली, तो उसको बोलते हैं पैसिव अग्रेसिवनेस। ओके, so how to deal with passive aggressiveness or with this type of people also? कोई आपको टॉन्ट मार रहा है, right? True. तो it's a negative emotion. Absolutely.
इससे क्या हम Okay. अभी आगे स्टेप क्या कर सकते हैं, जैसे ये वितर्क है तो हम आगे इसमें कंट्रीब्यूट ये कर सकते हैं कि वितर्क के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं। और उन्होंने बताया कि प्रतिपक्ष भावनम को अप्लाई करो, तो प्रतिपक्ष भावनम किस किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। सो हियर वी कैन टेक द हेल्प ऑफ मॉडर्न साइंसेस, मॉडर्न या साइकोलॉजी। असर्टिवनेस, तो वो क्या बोलते हैं कि बी असर्टिव, उसके ऊपर जो सॉल्यूशन दिया है ना, तो यू हैव टू बी असर्टिव। इफ समबडी इज, मतलब कोई गुस्से में टॉन्ट कर रहा है व्हाटएवर, तो उसके इमोशंस प्रोसेस नहीं हुए, उसने कुछ दबा के रखे हैं। सो व्हेनेवर दोस थिंग्स कम ऑन द सरफेस, लाइक सास बहू फॉर एग्जांपल, तो सास, उसके भी कुछ पास्ट में इमोशंस होंगे विच हैज नॉट बीन प्रोसेस्ड। तो जनरली रिलेशनशिप में आप टॉन्ट मारते हो, ये तो ऐसी ही है क्योंकि उसको भी किसी ने ऐसे बोला है। तो हाउ टू बी असर्टिव, यू हैव टू बी वेरी असर्टिव विद दिस टाइप ऑफ पीपल, विथ कंपैशन, काइंडनेस। तो असर्टिव के साथ में फिर ये भी गुण आने चाहिए आपको। तो इट इज गोइंग टुवर्ड्स मोर सात्विकता देन राजसिक एंड exactly तामसिक। being told. अब ये exactly what you said is because that person has suffered, the person is making a taunt, okay? राइट। You have to be compassionate. Now subconsciously, क्या आपको पता है which is this sutra in Yoga Sutra? मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा नाम राइट। सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम चित्त प्रसादनम। चित्त So what is प्रसादन। करुणा, आपने what is the word for करुणा? कंपैशन। आपने क्या बोला कि हमें कंपैशन दिखाना है, किसके प्रति दिखाना है? जो टॉन्ट मार रहा है। वो टॉन्ट क्यों मार रहा है? क्योंकि वो उसने सफर किया है। उसने सफर किया है, मतलब वो कौन सी कैटेगरी आया है? दुख, सुख दुख पुण्य पुण्य। तो एग्जैक्टली महर्षि पतंजलि ने 2300 साल पहले बोला है कि जो दुख में है उसके साथ करुणा का भाव करो। अब और कितना स्पेसिफिक, मतलब हम लोगों को स्पून फीडिंग करना है। मतलब हम कहते हैं कि हमारे इसमें मतलब नहीं है, और क्या चाहिए? तो सब दिया है, हम ही है कि हम समझ नहीं पा रहे। तो हम यहाँ से कुछ उठाओ, वहां से उठाओ, है ना। हमको यहाँ वहां से उठाने की जरूरत ही नहीं, अगर हम हमें जो दिया है वो उसको अच्छी तरह से समझे और दुनिया को बताने की कोशिश करें। सो इंटरेस्टिंग है। और व्हाई इट इज इंटरेस्टिंग इज क्योंकि ये टाइम टेस्टेड है, इसमें कुछ इफ बट नो, कुछ कंफ्यूजन ही नहीं है। जो आदमी पूरे साइंस को योगा के सिर्फ 3 शब्दों में डाल के उसकी डेफिनेशन बना सकता है, उसके जो विचार है वो कितने क्लियर और परफेक्ट हो गए। चित्त वृत्ति निरोध, नो कंफ्यूजन। इतना क्लियरली तो कोई अपना साइंस डिफाइन ही नहीं करता है। आप साइकोलॉजी की डेफिनेशन निकालो, इतनी बड़ी लंबी होगी। फिजिक्स की डेफिनेशन इतनी बड़ी लंबी। योग सूत्र, योग चित्त वृत्ति निरोध, दैट्स इट, नो कंफ्यूजन। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब हम फिर से अपने रूट्स के ऊपर जाए और दुनिया को अपने नजरिए से देखें। खुद को दुनिया के नजरिए से देखना अभी हो गया, वो हमने किया अब तक। अभी हम दुनिया को खुद के नजरिए से देखेंगे। सो वन थिंग वी हैव स्टार्टेड वर्किंग इज नाउ वी हैव अ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट विद द योग सूत्र सीक्रेट्स, योगिक सीक्रेट्स इन ग्रीक आर्ट। तो अब ये जो अलग अलग पेंटिंग्स वगैरह बनते हैं, स्पेशली दोज हु आर इनटू आर्ट एंड ऑल, तो हम दुनिया में जो आर्ट है उसको भी योग के नजरिए से कैसे देख सकते हैं, इसके ऊपर अभी कुछ काम चल रहा है। ये बहुत सारे काम हम कर सकते हैं और हर एक जो काम करेगा उसको ऐड करके ये बहुत बड़ा फिर एक मिशन बन जाएगा, राइट। सो विद दैट व्हाट वी कैन कॉल इट एज इंस्पायरिंग टॉक, वी विल एंड टुडेज सेशन। और इसी तरह से हम धारणा और ध्यान जो भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं, आर्यन जी फ्रेंड्स को बताओगे ना आप आज हमने क्या पढ़ा? सर दे टॉन्ट मी। वेरी गुड। वो जब तक पूरे ग्रुप से आपको निकालने देते तब तक वो बताना चालू रखना। Yeah, I'll treat them with compassion. With compassion. Very good, very good. But nice. I am very proud of Aryan ji क्योंकि हमारे वो so called male minority group में वो अकेले स्टूडेंट है। और youngsters and male, it's a very rare combination. But I hope this changes and you bring everybody, you know, हमारे आजू बाजू के जितने भी फ्रेंड्स है, मेल फ्रेंड्स है, उनको बताने की कोशिश करो कि योग सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, वो उतना ही लड़कों के लिए भी जरूरी है। क्योंकि गुस्सा तो मर्दों को भी ज्यादा आता है ना, हमको गुस्सा भी आता है, हमारा कंट्रोल तो बहुत लूज होता है, तो हमको इनफैक्ट योगा की ज्यादा जरूरत है।
Yeah. But the most suffered species is female only in this patriarchal Yes. society all over the world. That's why they are coming into it more. Yes. Yeah. But I feel if No? males come, no, the sufferings automatically will reduce. What do No, you say? they also have their own sufferings. There is. Only they can't. They don't come into on the surface. They On the have their surface. deeper sufferings. Yes, yes, I yes. have 2 males, 3 males. My dog is also male, so I can Yeah. understand. Nice. But that's again an interesting thing, है मतलब हमने pets में भी देखना चाहिए, you know, how yoga all this chanting and all would be helping, you know. That's an interesting area of study. Sir, these I mean, actually, they can go into meditation. I think dogs very easily. Whenever I chant Ram Raksha in the evening, no, my dog comes and sit with me. He likes that thing. Wow. I think they don't have all these distractions. I believe their concentration level is also more. Dogs, especially, they Good, have good. more senses. I mean, we perform, we have a brain, but they are, I mean, higher things. I mean, the Yeah. concentration, you know, Intellectually is more developed. other animals. Yeah. Like we talked about turtle today, how it's breathe. Right. So I think from every animal we can learn. Especially our pets, we can observe how they behave, their loyalty, integrity. So nowadays we are lacking that. Asan, yeah, Sthiram Sukham Asanam. They like to be with one master. They don't go everywhere. Very true. Loyalty. गुड ओके चलो अब हम शांति मंत्र कौन कहेगा आज शांति मंत्र उर्मिला जी आप कहोगे सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ओम शांति शांति शांतिः Yes, thank you very much, Urmila ji. Dhanyawad. Thank you everyone for joining. Namaste. Thank you, sir. And see you all again next week.